As is the norm, like I take down these notes from some videos. So this is one of those things. And we'll go easy. I'm not going to be in a rush, whatever, wherever we have anything to say or ask, we'll just try and understand as much as possible. And if it is not completed today, then we can carry it on for tomorrow also. Okay. The rest of it. We'll see however it goes. So you must become master of your mind. Why should we become master of our minds? First of all, the question is that हमें अपना master बनना क्यों जरूरी है? Because हमारा mind, as like we have been hearing, each moment, whatever we are thinking, and whatever we are saying, जो भी हमारे thoughts होते हैं या हमारे उसके साथ जो हमारे feelings connected होते हैं, with those thoughts and feelings, we are creating our future every moment, and we are not even realizing. Why we are not realizing? Because our mind is like creating these thoughts, say about 60 to 70,000 thoughts. I think most of you all must be aware of this fact. Every day our mind is creating about 60 to 70,000 thoughts. उसमें से most of the thoughts are, wasteful thoughts. Some negative thoughts, some positive thoughts, but mostly are wasteful thoughts. तो ये जो हमारे जितने भी thoughts हैं, wasteful thoughts are wasting our energy, and negative thoughts are and positive thoughts जो भी हैं, even wasteful thoughts, they are, making us create our future for us. आज के दिन whatever our life is, it is the result of what we have thought and experienced and felt in our past. And today, what we are thinking, feeling, and experiencing is going to create our future. So, since most of our thoughts are wasteful thoughts and negative thoughts, and that also without our realization, they go on and on and on. So, that means by default, we are creating our life, which is not going to be the one which we want the way we want our life to unfold for us. Isn't it? लग रहा है ये वाला बात की नहीं? आई थिंक आई विल अनम्यूट यू ऑल. आप लोग थोड़ा अपने आप को चेक में रखिएगा कि आप लोग अनम्यूट मत हो जाओ. जरूरत होगी ओनली देन यू रेज योर हैंड and then you can share. Does it resonate with you all what I just said, or do you all feel that? Yes, ma'am. Yeah, right. So this is what is happening. So why that is the reason we must become master of our mind. Ki at least we should develop that power, we should develop that ability to be able to check what kind of thoughts are going on in our minds. And when we are able to check and then we realize most of them are wasteful and negative thoughts, then we will be able to convert them into positive thoughts, or the thoughts that which we would like our life to be unfolding for us in our future, to create those kind of thoughts. So what he says, this is a write-up, not exactly a write-up, it was a video by Dr. Joe Dispenza. So I've taken notes from him. We may not be able to control everything in our outer world, but we certainly can control our inner world. It is not so important to not react, because everybody, including myself, reacts. The question is, how longer you react? That is the question. Now, why is saying, it is not so important to not react? What happens? We are facing situations, every day, good situations, bad situations, neutral situations. So as Shyans also says, and even I feel now, once he started explaining that every situation, fundamentally is a neutral situation. It is only our mind, which attaches the meaning to it, whether it is a negative situation or it is a positive situation. So once we attach that meaning to that situation, then we tend to react also, isn't it? हमारा अंदर से कोई ना कोई रिएक्शन भी आएगा, अच्छा रिएक्शन, बैड रिएक्शन. ठीक है, रिएक्शन has come, ठीक है, we have, it is our conditioning which has taught us to react certain ways or respond certain ways, and we do react that way. तो उस रिएक्शन को करके देन डू वी गेट ओवर इट एंड देन जस्ट लेट इट बी, ओके, एक बार आई बात, गई, हो गया, कुछ हमने, किसी ने हमसे नेगेटिव बिहेवियर किया, तो मैं नेगेटिव रिस्पॉन्ड किया,
अब नेगेटिव रिस्पॉन्ड करके डू आई स्टे इन दैट नेगेटिव फीलिंग और डू आई गेट ओवर इट एंड देन आई अलाउ माई सेल्फ टू गेट बैक टू माई नॉर्मल सेल्फ and get by, in fact, not only get back to my normal and neutral self, balki make an effort to get back to some stage, where I feel joyous. Because when I am in that state of joy, happiness, and gratitude, only then I create that life in future for myself, which is going to be up to my liking. Otherwise, अगर नेगेटिविटी में है, then whatever they say, कि as the things go inside you, the things go around you. As the things change inside you, things change outside you. So whatever goes inside us, हमारे माइंड में जो, हमारे हार्ट में जो चल रहा है, वही लाइफ हम अपने लिए क्रिएट करते हैं. So when we are faced with one such situation where things may not be up to our liking, we ended up reacting. एक बार रिएक्शन हो गया तो गुस्सा आ गया, किसी को बुरा भला बोल दिया, किसी ने मुझे बुरा भला बोला, मैंने किसी को बोला, या मेरे अंदर में एक दुख, मैं बोला भी नहीं तो मेरे को दुख हुआ या इरिटेशन हुआ, तो डू आई अलाउ माई सेल्फ टू स्टे इन दैट फीलिंग जोन? That is the question. How long do I stay in that zone, and how fast do I try and make an effort to come out of that zone? So we found out that when people react emotionally with anger, with antagonism, there is an arousal that takes place because you are turning on the sympathetic nervous system, and sympathetic nervous system is a primitive nervous system saying, Alex, whatever that is, it is a threat to you. क्या बोल रहे हैं? जब भी हमारे अंदर में ऐसे थॉट्स आते हैं, चाहे एंगर के, सैडनेस के, एंटागोनिज्म के, then there is an arousal that takes place inside us, which arouses our sympathetic nervous system. And sympathetic nervous system, as per Dr. Joe Dispenza, he's a neurologist, बहुत रिसर्च करके उन्होंने ये सब कुछ ये किया है. इनफैक्ट श्रेयांश ऑल्सो फॉलोज हिम टू अ ग्रेट डील. उनकी बहुत सारी टीचिंग्स जितना हम लोगों को इतना इजीली श्रेयांश समझाते हैं, इट्स ऑल हिज एक्सपीरियंस, जो से जो उन्होंने सीखा हुआ है, बाकी के और सब मास्टर्स को मिला के, then he has compiled that course and brought it up for us. तो what Dr. Joe says कि क्या जैसे कोई थॉट आया, इस तरह की कोई सिचुएशन आई, तो हमारे अंदर में वो जब फीलिंग आती है कि दिस सिचुएशन इज अ थ्रेट टू यू. सपोजिंग जैसे हम लोग अपने एंसेस्टर्स के टाइम्स में अगर हम जाएं, तो तब क्या होता था, इफ वी आर अटैक्ड, या इवन नाउ ऑल्सो इफ वी आर अटैक्ड बाय सम एनिमल, देन हमारी इंस्टिंक्ट क्या होगी? टू फाइट और फ्लाइट. या तो वहां से भागो या उसके साथ लड़ो. एक तो पहले हम भाग के अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करेंगे, एंड देन इफ द एनिमल या ऐसा कुछ थ्रेट जो भी है हमारे बहुत करीब आ जाता है, देन वी ट्राई टू फाइट इट. सो दैट फाइट एंड फ्लाइट मोड जो होता है, उसमें जो होता है, दैट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. उसमें जो हमारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, they are, those system is aroused by this sympathetic nervous system. So उसमें क्या बोलता है, जैसे कि for example he is saying Alex, whatever that is, it is a threat to you. ये सिचुएशन जो भी आई है वो तुम्हारे लिए एक थ्रेट है. That is why I am reacting like this. जब फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं तो हमारी बॉडी में किस तरह के आते हैं रिएक्शंस, जस्ट इमेजिन एंड विजुअलाइज कि सपोजिंग आई एम अटैक्ड बाय अ वाइल्ड एनिमल, है ना, तो मेरा बॉडी क्या एकदम तुरंत हमारे पैरों में भी जान आ जाती है. हम ऐसे भले भागने वाले नहीं हो, बट दैट मोमेंट हम लोग इतनी जोर से भागेंगे टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ एज मच एज पॉसिबल, जितना दूर हम जा सके. हमारी हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है, हमारे अंदर में वी स्टार्ट स्वेटिंग, परस्पायरिंग. All that is our body's mechanism that prepares us to to be in this state, and that is very important कि उस स्टेट में ही तभी हम पहुंचेंगे, तभी हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके वहां से भगा पाएंगे. बट अगर वो वाले रिएक्शंस हमारा नॉर्मल लाइफ में भी अगर डेली डेली होने लगे, then that becomes a threat to us also. That becomes problem for us. क्योंकि डेली डेली अगर छोटी छोटी बात में या लॉन्गर टाइम तक उसी फीलिंग जोन में रह के अगर हम उसी तरह का एक्सपीरियंस करते हैं, उसी तरह के केमिकल्स हमारे अंदर फिर रिलीज होने लगते हैं. व्हेन वी आर इन दैट फाइट एंड फ्लाइट मोड, तब हमारे अंदर जो ये केमिकल्स या हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो हमको सिर्फ उसी मोमेंट के लिए आते हैं, उतनी देर के लिए, कि जब हम एक बार प्रोटेक्शन वाले प्लेस में पहुंच जाएंगे, then they will subside, and then the softer ones, the hormones which are helpful for us, which are helpful for our growth, वो फिर रिलीज होते हैं.
it is only for that duration, little while duration, वो वाले during these hormones, you know, I don't remember the names of those hormones, you know what they call it, I don't remember. तो वो सब उतनी देर के लिए आते हैं, दैट इज गुड इनफ कि उतनी देर के लिए उनको आना भी चाहिए, तभी हमारे बॉडी से रिएक्शन आएगा, बॉडी में उतनी पावर आएगी, तब हम अपने आप को उतनी स्पीड में भगा भी पाएंगे. लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई है, तो इस सिचुएशन में भी हमारा माइंड हमको क्या बोल रहा है, दैट सिचुएशन इज अ थ्रेट टू यू, एंड इफ वी स्टे इन दैट सिचुएशन, उसकी मेमोरी हमारे माइंड में बाद में काफी टाइम तक बनी रहती है. सपोजिंग कुछ घंटों के लिए, पहले महीनों तक होती थी, सालों तक होती थी, धीरे धीरे करके विद प्रैक्टिस अब हम लोगों की कम हो रही है. मेरी तो बहुत कम हुई है, तो आई डोंट नो दूसरों की प्रैक्टिस कैसे चल रही है. सो व्हेन दैट हैपेंस, सो उसमें अगर वी कंटिन्यू स्टेइंग इन दैट state, that means those negative hormones which are supposed to be coming only for a little while and then they are beneficial for us, but if they continue, you know, getting released in our system for a longer while, then they produce negative impacts on our health, on our body, on our mental and psychological system, everywhere. So, and if there is a threat, a good way to deal with the threat is to get aggressive. That is primitive. It is very animal. वो एनिमल या प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स हमारे अंदर जागती हैं. यू नो वो थ्रेट के साथ डील करने का तरीका क्या है, टू बी इन दैट अग्रेशन मोड. अग्रेशन मोड में आएंगे तभी हम जाके उसके साथ वी कैन डील विथ इट. बट अगेन वही बात यहाँ पे आएगी. अभी लेट्स रीड ऑन. Some people will say, oh my god, there is my ex, and instead of getting angry, they run. They flee, they are in fear. अब जैसे कि he is giving an example. किसी का किसी लड़का है या लड़की है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड जो भी सामने आया, उसको देख के ही उसके अंदर में क्या आता है, या तो गुस्सा आएगा या डर आएगा, उससे वो बच के निकलना चाहता है. So instead of getting angry with that person in that situation, they run away, they flee, because they are in fear. Which fear? They don't want to face that person right now, because the experience in the past have not been good. That is the reason they are not together anymore. That is the reason it is called ex boyfriend, ex girlfriend, या ex wife, ex husband, जो भी. ठीक है. So they are like, I'm better just getting away. So fear causes them to run. So उनको क्या लगता है कि इस सिचुएशन से को कन्फ्रंट करने से बेटर है कि यहाँ से निकले. तो what is speaking there? It is their fear speaking from within them. So when people feel fear, when they feel anger, when they feel pain, those are the primary stimulators that switch on that sympathetic nervous system. हमने पढ़ा ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा कब काम करता है, जब हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड होगा, या प्रिमिटिव हमारी इंस्टिंक्ट्स हमारी जब जागती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओनली देन दैट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क्स. So, and they used to say that it is automatic, it happens automatically. So they used to say, means like some people who are facing these situations, when they are facing these situations and reacting negatively, that means हमारा वो fight and flight mode में हम आ गए, then हमारे वो hormones release हो रहे हैं. We are in that feeling of pain, anger, fear, या distress, या stress, या anxiety, जो भी. तो उस टाइम पे हमारा sympathetic nervous system जो ये hormones release कर रहा है, they feel this is a normal thing. जो person who is going through it, they feel this is happening not automatically. That is part of autonomic nervous system when you don't have any control of. It turns out that absolutely not the truth. That is absolutely not the truth. And what he is saying कि ये बात सही नहीं है क्या? That is part of the autonomic nervous system. एक है sympathetic nervous system, यहाँ पे है autonomic nervous system when you don't have control, where you don't have any control of. ठीक है. So we will understand autonomic nervous system के लिए आगे क्या बोल रहे हैं. It turns out that it is absolutely not the truth कि ये sympathetic nervous system के वजह से ये वाला release हो रहा है. Yeah, है ना? They say those are primary stimulators that switch on that sympathetic nervous system, and they used to say that it is automatic, it happens automatically. अभी तक इन लोगों को क्या लग रहा है? Sympathetic, हम लोग जो person who is facing this situation, they feel this is because of the sympathetic nervous system and it happens automatically.
बट डॉक्टर जो का क्या कहना है, नो इट इज नॉट sympathetic nervous system, it is autonomic nervous system when you don't have any control of. It turns out that is absolutely not the truth. So first thing is learning how to shorten your response to the emotional reaction. शॉर्टन करना है। अब हमारा इमोशनल रिएक्शन होना, डॉक्टर जो बोला कि मैं भी करता हूँ, मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं भी रिएक्ट करूंगा बिकॉज माई कंडीशनिंग वैसी है, तो माई इमोशनल रिएक्शन इज गोइंग टू बी लाइक दैट। बट डू आई स्टे इन दैट रिएक्शन मोड? उसी फीलिंग में मैं 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, 1 महीना 2 महीना, कई लोग तो 10 साल 20 साल भूलती नहीं है वो बात कि उसने मेरे को ऐसे बोला था। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट मेमोरी में जैसे ही वो बात आती है, हमको याद आती है, तो हमारे माइंड को ये नहीं पता होता कि रियलिटी में दैट एक्सपीरियंस इज हैपनिंग राइट नाउ और इट इज जस्ट द इमेजिनेशन, कि वाई इमेजिनेशन मैंने सोचा है इसीलिए दैट इज कमिंग, दैट पिक्चर इज कमिंग। माइंड थिंक्स कि वो चीज अभी हो रही, जैसे मैंने वो मेमोरी को माइंड में लेके आया, सपोजिंग ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट की मेमोरी जैसे ही मैंने अपने माइंड में लेके आई, माइंड थिंक्स दिस इज हैपनिंग इन रियलिटी, और जैसे ही वो रियलिटी की बात आएगी तो उस हिसाब के वो हार्मोन्स वहां पे रिलीज होने लगेंगे, विच अगेन क्रिएट दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस फॉर अस, विच मेक, अब वो हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं दे मेक अस गो इनटू दैट फीलिंग जोन अगेन। या सो इफ यू हैव एन इवेंट दैट हैपेंस इन योर लाइफ एंड आई से एलेक्स व्हाई आर यू सो मैड टुडे, सपोजिंग एलेक्स का एग्जांपल देते हैं कि अगर ऐसा कुछ इवेंट हम लोगों की लाइफ में हुआ है and I am feeling very bad, then एक दूसरा मेरे से पूछता है भैया तुमको क्या हुआ है, why are you feeling that sadness in you, and you say it is because of this situation and this person, this happened this way, क्योंकि मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है इसलिए, क्योंकि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे को ऐसे बोला है ना। हम लोग ऐसे ही तो करते हैं ना, नहीं निकल पाते हैं उस सिचुएशन से, हम अलाउ करते हैं उस सिचुएशन को, उस पर्सन को, कहीं हमारे माइंड पे हावी रहे, उस मेमोरी को बार बार रीलिव करके that stays fresh in our mind for hours or for days, for months or for years. For some people it stays fresh in your mind. So they are like, अच्छा ये आप कहाँ गया मेरा, and you say because of this situation of this person this happened this way, and I would say that, oh my gosh, do you mean that person or that circumstance is controlling the way you feel and the way you think? उस सिचुएशन या वो पर्सन में इतनी है एबिलिटी, इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है कि आपके थॉट्स को और आपकी फीलिंग को वो कंट्रोल कर रहा है। नाउ एनीथिंग दैट इज कंट्रोलिंग द वे वी फील एंड द वे वी थिंक मेक्स अस विक्टिम्स। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने अलाउ कर दिया अगले को, मेरे को कंट्रोल करो, मेरी खुशी भी आपकी बातों, आपकी कही हुई बातों में मेरे को खुशी मिलती है, आपकी कही हुई बातों से मुझे तकलीफ भी होती है। So what have I gotten into? I've gotten into a victim mode. Somebody is making me a victim. उसकी बातें मुझे परेशान करती हैं, तो मेरे अंदर तो स्ट्रेंथ नहीं है ना कि मैं उस सिचुएशन से निकल पाऊं। मैंने अपनी स्ट्रेंथ पकड़ा दी किसी और को, किसी सिचुएशन को, किसी इंसान को, कि आप मेरे को जैसा फील कराना चाहो, यू कैन मेक मी फील दैट वे, you can make me feel happy, you can make me feel sad. So what have I become? I have become a victim. I have gone into a victim mentality. उसने मुझे बोला तभी तो मेरे को ऐसे फील हो रहा है, नहीं तो मैं ऐसे तो नहीं थी, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले बहुत खुश थी, क्योंकि उसने मुझे ऐसे बोला मुझे इतना दुख हुआ, अब मैं दुखी फील करती जा रही हूँ। सो I've gotten into a victim mode. Whatever that is. Now, whatever that is. Okay, one sec. I'll just. Yeah. So whatever, मेरे को लिखने में थोड़ी गड़बड़ होती है तो यहाँ पे मैं करेक्शंस भी करती जाती हूँ। नाउ दैट्स ओके। वो सिचुएशन क्या भी थी तो मैंने उसमें अपने आप को विक्टिम, आई हैव अलाउड दैट पर्सन एंड सिचुएशन टू get myself into a victim mode. But if you keep that emotional reaction going on for hours or days, and I say to you, Alex, it's 5 days. What's up? 5 दिन पहले वो बात हुई थी, अभी भी तुम उसी फीलिंग्स में हो, तुमको तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? Why you still feeling sad? I'll give my example. I was say what, today is what, Thursday, so just about 5 days, in fact
व्हाट अ कोइंसिडेंस, मेरे साथ भी ये बात 5 या 6 दिन पहले हुई है। किसी ने मेरे को बहुत 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 ज्यादा मजाक के रूप में, मजाक करते करते, दैट पर्सन हैज द हैबिट ऑफ, वी वर इन अ ग्रुप, तो उनको बहुत आदत है जिसके साथ में मजाक करने की। मेरे शायद शायद 2-4 साल छोटे ही होंगे। तो मजाक करते करते देन आज तक मेरे साथ इस तरह का मजाक नहीं हुआ था। सो ही स्टार्टेड जोकिंग विद मी एंड दे आर ऑल वेरी फॉन्ड ऑफ माई सिंगिंग, तो दे इंसिस्टेड दैट आई सिंग। आई सेड नो, आई एम नॉट इन द मूड, आई विल नॉट सिंग। तो उस एक बात को पकड़ के उन्होंने मजाक जो करना शुरू किया, वो मजाक मजाक करते करते ही वेंट इनटू his mazak, his jokes took a ugly turn, very ugly turn, and went on for on and on and on and on and on. So much so कि वहां, since we were in a group, I did not, दो मेरा अंदर से ही आ रहा था कि मैं से उठूं एंड निकल जाऊं। वो मजाक का जामा पहना के बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला जा रहा था मुझे, एंड दैट पर्सन वाज नॉट इवन रियलाइजिंग कि दैट व्हाट ही इज डूइंग। बट मैं वहां से नहीं उठी, एंड उसके बाद व्हेन आई केम बैक, I could not bear it, I was crying. I was in a very bad state. बहुत दुख हुआ मुझे, and it continued. एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं. I was like 3 दिन तक, very bad state. And then उसके बाद फिर, in fact, he felt bad and he sent me an apology also. तो, even इतनी प्रैक्टिस के बाद भी, मेरे को यही लगा कि, अच्छा, just before he sent me an apology, and I was like connecting to my higher self, उस यूनिवर्स को मैं बार बार प्रेयर, I know I am in that state and I'm not going to, you will not allow me to stay in this for long. You send me what you want to send me, how you want to take me out. तो ये कुछ कुछ मैसेजेस मेरे सामने आ रहे थे, इस तरह की कुछ कुछ आ रही थी, एंड देन माय थिंग वाज, मेरे को जो मैसेज मिला कि जो जैसा जहां भी जैसा भी कर रहा हो आपके साथ, आप उसको, योर वर्क इज टू सेंड लव टू दैट पर्सन. तो दैट ब्रॉट some peace into my being. And then next message I got, just random messages जो हम लोगों को मिलते हैं ना, that, and then you have to say कि ये which one of these is working for me. तो कोई ग्रुप में कोई चीज आ गई, कोई ग्रुप में कुछ दिख गया. Next message was for the forgiveness. So while I was just working on these two things, करते करते अभी मेरे को थोड़ा अपने अंदर पीस आना शुरू हुआ. Immediately, within half an hour, that person sent me an apology. So they say, no, as things change inside you, things change around you. So I saw it एकदम प्रत्यक्ष. 3 दिन से मैं रो रही थी non-stop. My eyes were swollen. I was not in a state to show my face to anybody. It was that bad. जो क्योंकि उन्होंने बोला इतना गंदा था, इतनी गंदी बातें बोली. But बाद में he realized कि it was my mistake and please forgive me. मेरे बहुत बहुत गलत आपको बोला. So, but if you keep that emotional reaction going on for hours or days, and I say to you, Alex, it is 5 days, what's up? तो मैं या तो उस मोड में रहती, रोती रहती, बट मेरी पुकार क्या थी उस यूनिवर्स को कि नो, आई डोंट वांट टू स्टे इन दिस. आई नो दिस इज नॉट अ राइट थिंग व्हाट आई एम डूइंग. आई एम फीलिंग बैड, आई एम फीलिंग सैड, लेकिन कब तक, कितने देर तक? अब मेरे अंदर, बिकॉज ऑफ दिस सैडनेस और ये जो रॉन्ग फीलिंग, मेरे अंदर बैड फीलिंग्स आ रहा है, आई एम going down and down and down. I'm slipping downwards. I'm slipping into the darkness. And this is not the place where I want to be. So you please help me out. And when I did, मेरी वो जो prayers मैंने की, तो मुझे वो answers मिले. And when I, followed those answers and I got, अपने अंदर जैसे ही मेरे peace आनी शुरू हुई, immediately वहां से भी फिर reaction आया. तो बट अगर मैं नहीं करती वो चीज, मैं रहती, या तो एक टाइम था ना कि उसी चीज को लेके पड़े रहते थे. अब तो दैट थिंग हैज कंप्लीटली गॉन ऑफ ऑल्सो. विद इन 5 days 6 days वो टोटली एकदम क्लीन हो गया माइंड से. बिकॉज ना अब ये स्टेट ऐसा हो गया, अब ज्यादा देर तक उस पर रहते नहीं है, उससे निकलने की आदत हो गई अभी. वाइल अर्लियर इट यूज्ड टू बी कि यही वाली सिचुएशन रहती तो महीनों तक शायद चलती कि हाउ डेयर ही टॉक टू मी लाइक दिस, उसने बोला कैसे मुझे ऐसे, और वो चलती रहती, वो बार बार उसको रीलिव करो रीलिव करो रीलिव करो. अभी द थिंग इज लाइक एट प्रेजेंट द मोमेंट आई डोंट इवन रिमेंबर उसने क्या क्या वर्ड्स बोले थे. ओनली द थिंग इज दैट आई फेल्ट वेरी बैड. ओनली अ फ्यू थिंग्स आई रिमेंबर, ये बोला, ये बोला, ये बोला. बाकी का क्या बोला था वो तो क्लीन ही हो गया माइंड से. सो माई माइंड इज ऑल्सो हेल्पिंग मी
अगर मैं उसको याद नहीं रखना चाह रही हूँ तो वो भी मेरे को हेल्प कर रहा है कि उसको ब्रश आउट करो, हटा दो वहां से। अगर मैं उसमें से नहीं निकलना चाहूँ, उसी स्टेट में रहना चाहूँ, तो मैं कितना अपने अंदर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करूं। सो it happened, what he's saying, what's up? And you say that I'm upset because something that happened to me 5 days ago. And I'd say you would have a mood. One sec, please. Let me just put the battery. Guys, let me just put the battery charger. Yeah. So, but if you keep that emotional reaction going on for hours or days, and I say to you, Alex, it's 5 days. What's up? 5 दिन हो गया यार, भूल जाओ उसको, क्यों इतना लेके बैठे माइंड में। एंड उसके बाद तुम क्या बोलते हो? You say to me, I'm upset from something that happened to me 5 days ago. Then अब क्या हो गया? उस टाइम पे तो मेरा वो रिएक्शन निकला था. And if I allow it to stay on for 5 days, then what I am in a mood, in a bad mood. अब वो मेरा mood का हिस्सा बन गया. That reaction which I am letting continue. Now, some people keep that same emotional reaction going on for weeks or for months. And then, agar they continue keeping that feeling and that reaction for months and for weeks, then I would say, well, Alex has an angry temperament. अब वो मेरा temperament बन जाता है. Mood थोड़े टाइम के लिए है. पहले reaction comes for a small while. फिर then मैं उसको ज्यादा कुछ दिनों के लिए लिंगर होने देती हूँ. Then it becomes part of my mood. मेरा मूड ही है. ऐसे बोलते हैं ना हम लोग कितनी बार, इसका तो आज इसका मूड खराब है, इसका मूड कुछ दिनों से खराब चल रहा है. But if I allow it to continue for weeks and then for months, then that becomes part of my temperament. तब हम क्या बोलते हैं? ये तो है ही गुस्सैल. ऐसे इंसान के लिए हम क्या बोलते हैं? बिकॉज उसका बार बार गुस्सा निकलता है ना. अभी तक वो गुस्सैल था नहीं, बट दैट सिचुएशन उसने अलाउ किया कि वो सिचुएशन उसको हर्ट करे, उसको सैड फील कराए, एंग्री फील कराए. एंड ही हिमसेल्फ अलाउज, शी हरसेल्फ अलाउज टू स्टे इन दैट फीलिंग फॉर दैट लॉन्ग पीरियड. तो पहले वो रिएक्शन से मूड में आ गया, रिस्पॉन्स से मूड में आ गया, मूड से फिर वो टेम्परामेंट में चला गया. अब टेम्परामेंट में चला जाता है तो लोग हमको बोलने लगते हैं ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही ऐसा, इसको तो गुस्सा करने की आदत है ना. हैपेंस और डजंट हैपन? एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर यहाँ पे? आई एम गोइंग इनटू अ लिटिल डिटेल. चेतना जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. मैं अपनी एक शेयरिंग छोटी सी बोलूं? एक बार ये करो ना प्लीज, वीडियो ऑन करो ना, वुड बी हाँ, नाइस. एक सेकंड, या एक सेकंड, जस्ट जस्ट सेकंड. या अदिति बोलो. यस, ये आज मॉर्निंग की ही बात है. आ, मेरे घर में कोई गेस्ट आए हुए थे और उन्होंने मुझसे कोई बात की, विच मतलब कन्वर्सेशन आई कैन शेयर है. और मैंने उनको जो रिप्लाई दिया, दैट वाज वेरी मच वैलिड रिप्लाई. मतलब मेरे को किसी बात पे उन पे गुस्सा आया, और गुस्सा नहीं आना चाहिए था, मुझे उनको फॉर्मली किसी चीज के लिए मना करना चाहिए था, या उनको फॉर्मली कहना चाहिए था. मगर मेरा रिएक्शन, मतलब मेरी जो टोन थी ना, दैट वाज नॉट राइट. मेरी टोन राइट नहीं होने की वजह से हमारी 2-3 मिनट की एक आर्ग्यूमेंट्स हुई, और वो मतलब एक बैड नोट पे ये चीज चली गई. ठीक है. उसके बाद सारा दिन मैं थोड़ी सी अपसेट रही. फिर मैंने दी सीक्रेट मूवी देखी, थोड़ी सी अपने आप को, अपने माइंड को ओके करने के लिए, बिकॉज पता है कि ठीक रहना हमारे लिए, मतलब ऐसे मूड में रहना ठीक नहीं है. क्योंकि सारा दिन अगर ऐसा निकल गया, रात को फिर रात को हमें खुद को गलत लगेगा. सो उसके बाद अभी जैसे आपने ये एक्सप्लेन किया कि जो मतलब हमारा मूड कैसे होता है, और फिर उसको आगे मतलब कैसे कैसे क्या 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 स्टेप्स हैं. सो मैंने रियलाइज किया कि यस, मेरी टोन गलत थी उस टाइम पे, जिसकी वजह से हमारे आर्ग्यूमेंट्स हुए और मेरा मूड खराब हुआ. अगर मेरी टोन ठीक होती तो जो बात मैं कहना चाहती थी मैं जस्ट फॉर्मली कह देती, और हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. एंड व्हाई जैसे टोन भी अगर ऐसे गड़बड़ हुई है तो वी शुड गो बैक इनटू आवर माइंड अगेन. अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मेरी टोन ऐसे क्यों निकली थी,
क्यों नो, सी मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ। उस दिन जब मेरे साथ ये बात हो रही थी, इट वेंट ऑन फॉर मोर देन हाफ एन आवर, अबाउट एन आवर इट वेंट ऑन, यू नो। तो यस आई वॉज लाइक इन अ वेरी स्टेबल स्टेट, बिकॉज इतने महीनों से ये प्रैक्टिस चल रही है ना, अब मैं फोकस कर पाती हूँ, समझ पाती हूँ कि मेरा माइंड से कब कैसे रिएक्शन निकलेगा, यू नो। तो उस रिएक्शन को मैं बहुत हद तक कंट्रोल भी करती हूँ, है ना। तो ये तो कहीं मेरी सोल को जाके टच गया, ऐसे लग रहा था कि मेरी आत्मा को जैसे छील दिया। इट वॉज दैट बैड, बहुत गलत बोला, बहुत बुरा बोला। तो मेरी आत्मा ही नहीं बर्दाश्त कर पाई, माई सोल वॉज नॉट एबल टू यू नो टॉलरेट इट, एंड आई एंडेड अप क्राइंग। दैट वॉज ऑल्सो व्हेन आई लेफ्ट दैट प्लेस। वहां पे मैंने कुछ नहीं रिएक्ट किया, नॉर्मल नेचुरल। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा अगर ये गुस्सा निकल आता है तो ये हैज इट बिकम पार्ट ऑफ माई मूड, हैज इट बिकम पार्ट ऑफ माई टेम्परामेंट, कि हमारा ऐसे कैसे निकल आया रिएक्शन, क्यों निकल आया। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। नाउ इट इज हाँ टेम्परामेंट, इट इज बिकम पार्ट ऑफ योर टेम्परामेंट, है ना। यस क्योंकि जब मैंने आपने इसको ये सारा एक इनिशियल स्टेज पे, एक नहीं हजारों ऐसी इंसिडेंट्स हमारे साथ होती हैं। तो अब जब से मैं इस प्रैक्टिस में हूं ना, अपने आप को जब ध्यान देती हूँ, इनफैक्ट जब से ये मैजिक बुक का प्रैक्टिस हुआ, मैजिक बुक का भी करते करते समझ में आने में बहुत टाइम लगा। एंड वन थिंग दे से नो, कि एक उसमें एक आता है ना कि फॉर अ डे, आज के दिन एक दिन ऐसा करो कि नो कंप्लेंट्स डे जाए हमारा, है ना। तो वो खाली एक दिन की बात नहीं है। जब अपने आप को वॉच करना शुरू किया, उस पर ध्यान देना शुरू किया, उसको भी आके तुरंत नहीं हुआ था, बहुत टाइम लगा। कभी होता था, कभी नहीं होता था, फिर वापस वही कंप्लेनिंग मोड में। तो कंप्लेनिंग मोड भी क्या, अगर मेरे को किसी की बात से चिढ़ लग रही है, दैट इज कंप्लेंट। अगर मेरे घर में किसी ने बेल बजा दिया, गेटिंग इरिटेटेड, मेरे को नहीं मन है खोलने का, कंप्लेंट। अगर मेरे को किसी चीज से डर लग रहा है, कंप्लेनिंग, बिकॉज आई एम नॉट लाइकिंग दैट सिचुएशन, दैट पर्सन, आई एम स्केर्ड ऑफ दैट पर्सन, दैट सिचुएशन, दैट इज व्हाट आई एम कंप्लेनिंग अबाउट। वॉट एवर इज हैपनिंग इन साइड इन फ्रंट ऑफ मी, इफ आई एम नॉट हैप्पी विद दैट सिचुएशन, दैट मीन्स आई एम इन अ कंप्लेंट मोड। तो जितना जितना जब इस पे ध्यान देना शुरू किया, मेरे पे रोक आनी शुरू हुई। इनिशियली इट वॉज टफ, वेरी टफ, ऐसे रिएक्शन निकल जाता था, बिकॉज आई एम इन द हैबिट ऑफ रिएक्टिंग लाइक दिस, बिकॉज इट हैड बिकम पार्ट ऑफ माई टेम्परामेंट, तो मैं ऐसे रिएक्ट कर देती थी। बट स्लोली व्हेन आई मेड इट रिजॉल्व कि नहीं, अब मेरे को रोकना है अपने आप को, स्लोली 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 स्लोली। अब वैसा कुछ आता भी है तो हल्का सा, मीन्स अंदर ही नहीं जाता है, आया आउट, आया आउट, आई एम नॉट रिएक्टिंग ओनली। बट इट वॉज रिक्वायर्ड अ लेकिन लॉट अभी ऑफ जैसे प्रैक्टिस, आपने मंथ्स बोला ऑफ ना प्रैक्टिस, एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, बहुत मंथ्स लगे इसमें। And the more I'm doing this, यस more I'm realizing the miracles are happening. क्योंकि कचरा निकल गया, मेरा अंदर का स्वरूप तो इस हैप्पी स्वरूप, जॉयफुल स्वरूप, लव स्वरूप, ग्रेटिट्यूड वाला है। जब ये कचरे निकल गए ऊपर से, तो मिरेकल्स अपने आप होने शुरू गए। अब ना, अब ये जो सिचुएशन आई, या ऐसा कुछ और थोड़ा बहुत हो रहा था, तो अगेन आई वाज रियलाइजिंग कि मैं फिर से वो रेजिस्टेंस मोड में जा रही हूँ, फिर से वही कंप्लेंट मोड में जा रही हूँ। मेरे माइंड में वो थॉट्स बार बार चल रहे हैं अभी। अर्लियर क्या हो रहा था, प्रैक्टिस के साथ जैसे ही थॉट आता था, आउट थॉट, मैं आई विल नॉट अलाउ दैट थॉट टू स्टे, मैं उसको रूट ही नहीं पकड़ने दूं अपने माइंड में। बट अब मुझे लग रहा था दीज थॉट्स आर यू नो टेकिंग रूट इन माई माइंड, एंड आई एम लिंगरिंग, यू नो दे आर लिंगरिंग इन माई माइंड, आई एम पॉन्डरिंग ओवर देम। तो ये करना भी बहुत बड़ी गलत बात है। ये जितना होगा उतना अगेन मैं उसमें, मेरे को रियलाइज नहीं हो रहा मेरा माइंड इज रिएक्टिंग, मैं वो पिक्चर्स मेरा माइंड क्रिएट कर रहा है और मेरी बॉडी वैसे रिएक्ट कर रही है। And the more my mind and my body are reacting that way, the more I feel that way, the more I'm going to, those hormones are going to release again, फिर they will again make me feel, go back to in that feeling zone again। मेरा वो एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है, थॉट आया, थॉट से फीलिंग में गए, फीलिंग से फिर वही थॉट आएगा, फिर थॉट से फिर वही फीलिंग में जाएंगे। इट कंटिन्यूज एंड ऑन अनलेस आई गिव अ ब्रेक। तो वहां पे अपने आप को समझ में, दैट इज वाई द प्रैक्टिस कम्स। Why do you have to become the master of your mind? Yeah, is it your mind that is running you? वो माइंड में ऑटोमेटिकली सब कुछ चलता जा रहा है, आपके थॉट्स चल रहे हैं, थॉट्स से फिर फीलिंग्स जनरेट हो रही है, फीलिंग से फिर थॉट्स चल रहे हैं, और यू आर द मास्टर ऑफ योर माइंड, where you have developed that power to cut that thought out and release yourself from that feeling zone. That is what our entire practice is, है ना। तो हमारे अंदर से ये रिएक्शन भी क्यों निकलता है, या किसी ऐसे कितने लोग होंगे ना, कितने सारे लोगों का, क्यों बुद्धा के सामने कोई उनको थूक भी देता था, थप्पड़ भी मार देता था, तो क्यों नहीं रिएक्शन निकलता था? बिकॉज ही हैड प्रैक्टिस्ड, कि मैंने अपनी खुशी, मैंने अपने आप को कभी उस विक्टिम मोड में जाने नहीं दिया, मैंने अपनी किसी किसी को खुशी भी नहीं दी है, किसी को दुख भी नहीं दिया। मेरे को रियलाइज होता है कि मैं
क्यों दुखी हो गई मैंने, दैट मीन्स आई एम स्टिल इम्पैक्टेड. इफ पीपल से हैप्पी थिंग्स अबाउट मी, आई फील हैप्पी. इफ दे से बैड थिंग्स अबाउट मी, आई फील बैड. एंड नाउ माई प्रैक्टिस विल बी, मेरी प्रेयर इज कि अब मेरे को आप इसमें से निकालो. बहुत चीजों से आपने निकाला, आप मुझे इसमें से निकालो, दैट आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन others for anything, for my happiness. If I am not dependent on them for my happiness, उनकी कई बातें मुझे खुश नहीं करती, तो वो एक दिन आएगा उनकी कई बातें मुझे बुरा भी नहीं फील कराएंगी फिर, है ना. तो प्रैक्टिस है. जितना जितना रियलाइज हो रहा है, हम लोग बहुत सारे ऐसे हम लोगों के अंदर में कंडीशनिंग भरी हुई है, बहुत सारे ऐसे इमोशंस भरे हुए, हम लोग को रियलाइज भी नहीं होता है. ओनली व्हेन वी आर फेस्ड विद दीज सिचुएशंस वी रियलाइज, ओके दिस इज व्हाट इज नाउ आई नीड टू वर्क ऑन, है ना. जब तक ये सुनती थी बातें तो मुझे भी लगता था, श्रेयांश सर से बहुत बार मैंने सुना, ही सेज आई डोंट गिव माय पावर टू एनीबॉडी. मैं भगवान को भी नहीं देता. भगवान मीन्स लाइक दैट, जो हम लोग ये मूर्ति वाले भगवान या कुछ भी बनाते हैं. आई नो आई डू कनेक्ट दैट विद एनर्जी एंड ऑल, बट मैं अपनी पावर किसी को नहीं देता. किसी के अंदर मेरे वो पावर नहीं है जो मुझे दुखी कर जाए या मुझे खुश भी कर जाए. तो ये जब बातें मैं उनसे सुनती तो मुझे लगता था, हाँ आई एम ऑल्सो इन दैट जोन. नो, आई एम नॉट इन दैट जोन. To reach that zone, a lot of more practice and power is required, for which my prayer is going now. कि now I have realized, मेरे सामने आप ये सिचुएशन लेके आ, मुझे समझ में आया कि मैं बहुत अभी भी डिपेंडेंट हूँ बाहर की सिचुएशंस पे. Now my prayer is, आप मुझे इसमें से कैसे निकालोगी. So let's see कैसे होता है ये आगे काम पे, है ना. तो ऐसे बहुत सारी आती हैं अभी चीजें. कभी कभी लगता है कि जजमेंट मेरा काफी कम हो गया, बट स्टिल जैसे ही थोड़ा सा जजमेंट आने लगता है कि अभी से सटल लेवल पे अभी भी बाकी है, प्लीज हेल्प मी कम आउट ऑफ दिस जजमेंट. आई एम स्टिल नॉट इन दैट वननेस का जोन. प्लीज हेल्प मी, हाउ डू आई गेट इन टू दैट जोन ऑफ वननेस. तो ये ज्यादा ज्यादा रियलाइजेशन होने लगता है अपने अंदर के साथ में, व्हेन यू आर इन दिस प्रैक्टिस. But if you keep that emotional reaction going on for hours or for days, I say, Alex, it's 5 days, what's up? And you say to me, I'm upset from something that happened to me 5 days ago. Then I would say, you have a mood. Now, some people keep that same emotional reaction going on for weeks or for months. And then I would say, well, Alex has an angry temperament. It becomes a temperament. If it keeps going on for years on end, and which it happens with many, कई लोग होते हैं ना सालों तक उस बात को रिलीज नहीं कर पाते. आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट. मेरे को लगता था कोई कोई बातें मैं नहीं छोड़ पाती थी, वो दिमाग में आ जाती थी तो मेरे को फिर वही आ जाता गुस्सा कि मेरे साथ ऐसा हुआ था उस टाइम पे. Why they are angry, and they will recall an event from 10 years ago or a series of events from 10 years ago. When you ask them, then क्या होता है, if it keeps on going on for years on end, which it happens with many, then क्या बन जाता है, temperament से it becomes part of your personality trait. So here is the weird part about it. You ask that person who is being angry for years why they are angry, and they will recall an event from 10 years ago or a series of events from 10 years. अब पर्सनैलिटी का जब हिस्सा बन गई तो खाली आपको वही सिचुएशन के ऊपर थोड़ी ना गुस्सा आएगा. अब तो कोई उसकी सिमिलर सिचुएशन होगी या कोई भी छोटी बड़ी सिचुएशन होगी, इट बिकम्स पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी. अब मैं हर छोटी बड़ी बात पे गुस्सा करती हूँ. गुस्सा करना मेरा नेचर, मेरी पर्सनैलिटी का ट्रेट बन गया. Isn't it? So, and the research on the memory says that 50% of that story is not even the truth. They can't even remember the truth. जब मैं अब बता रही हूँ, मैं अपनी बता रही हूँ ना, मुझे तो उसमें से 50% बातें याद भी नहीं उसने मुझे क्या बोली थी. कुछ कुछ याद है, बट दैट फीलिंग, वो फीलिंग जो मेरे अंदर गई थी, वो फीलिंग अभी तक जिंदा है कि मुझे उसने इतना दर्द ला के दिया तो मैं उसमें से निकल ही नहीं पा रही थी. आई वाज क्राइंग, मुझे वर्ड्स नहीं याद आ रहे थे, बट दैट फीलिंग वाज देयर कि मुझे इसमें से निकलना, आई एम नॉट लाइकिंग दिस फीलिंग. सो जब लोग इस तरह का बोलते हैं ना कि 10 साल पहले मेरे साथ ऐसी बात हुई थी, मेरे साथ ऐसा हुआ था, और उस बात को अभी तक लेके जी रहे हैं, उस बात को भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, बोलते हैं मैं तो जन्म जन्म इसको माफ नहीं करूंगा. मत माफ करो यार, किसका नुकसान हो रहा है, तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है. और जब वो उसके बारे में बताते हैं, अच्छा तुम्हारे साथ क्या हुआ था, देन दे विल कम आउट विद दैट स्टोरी कि ये हुआ था. अब उस स्टोरी में 50% बात तो उनको याद भी नहीं है, उसमें जो एड ऑन करते हैं वो आधा से ज्यादा वो ट्रूथ भी नहीं होता है. अपनी तरफ से माइंड हमारा बहुत कुछ एड ऑन कर देता है. बात शायद एक का ही होगी, उसमें 4 और बातें हम एड ऑन कर देते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम कि ये बात भी उसने कही थी, क्योंकि मेरा माइंड उसके साथ एड ऑन करके सोचता जा रहा है
और कब वो सोच से निकल के उसकी रियलिटी बन जाता है, वी डोंट इवन रियलाइज। हमें लगता है उसने ये बात बोली थी, जबकि द फैक्ट वॉज उसने ये वर्ड नहीं बोला था, कुछ और वर्ड बोला होगा, इस तरह से इस वर्ड को नहीं बोला होगा। सो वी डोंट इवन रियलाइज हमारा माइंड किस तरह से हमारे लिए काम करता है, एंड वी अलाउ आवरसेल्व्स टू our mind to control us and make we allow ourselves to be a victim of our mind, of our thinking. So 50% of that story is not even the truth. They can't even remember the truth totally. They embellish the story and make it sound worse than it really was to excuse themselves from changing. अब क्यों करते हैं ऐसे? कि हमको अपने आप को बदलना नहीं है, हम इस दुख में हैं, इस दर्द में हैं, तो इसका एक कारण है और उस कारण की वजह से मैं दुख में हूं। अब दुख में हो तो भैया मेरे को किसने कहा था, मैं तो निकल आई ना उससे से, मेरे को क्या जरूरत है, मैं उसी दुख में पड़ी रहती जैसा पहले होता था, है ना। तो मैं अब मेरे अंदर में क्या है, विलिंगनेस क्या है कि मैं अपने आप को बदलना चाह रही हूँ। दैट इज व्हाई आई हैव मेड एन एफर्ट टू कम आउट ऑफ इट। बट हमको पहले क्या है, जो होगा जिसको अपने आप को बदलना नहीं, बिकॉज बदलने में एफर्ट है, इतनी सारी सोच, मैं अपने आप को पहले देखूं, अपने आप को देखना शुरू करूं कि मेरे अंदर में कहाँ रॉन्ग थॉट्स जा रहे हैं, फिर वो थॉट्स को पकड़ूं। एक तो वो इसमें ही बड़ी ताकत लग जाती कि थॉट्स को पकड़ना है, थॉट्स को वॉच करना है, तो ऑटोमेटिकली इतना थॉट प्रोसेस चल जाता है, हमको रियलाइज ही नहीं होता कि हमने अभी बैठे बैठे 5 मिनट में क्या क्या सोच लिया, कितना नेगेटिव था, कितना यूजलेस था, कितना पॉजिटिव था, हमें ध्यान ही नहीं रहता। तो पहले तो वो ध्यान दो, ध्यान देने के बाद अगर कोई थॉट पकड़ में आया तो अब उसको वैसे रहने भी नहीं देना है, उसके अगेंस्ट हमको पॉजिटिव थॉट भी क्रिएट करना है, फिर फॉरगिवनेस भी करनी है, फिर उसके बाद लव भी भेजना है किसी को। कौन करेगा इतनी मेहनत? Who has that much time? I don't want to change. I'm happy the way I'm feeling sad and bad. I want to stay in that zone. So इसीलिए उसको फीलिंग में रहते हुए जब हम उसको बार बार सोचते रहते हैं, खिचड़ी पकाते रहते हैं, तो उस खिचड़ी में फिर मसाले ऐड ऑन होते जाते हैं, नए नए वर्ड्स ऐड ऑन हो जाते हैं जो हमारा माइंड हमको हेल्प करता है ऐड ऑन करने में। सो इट इज नॉट माई चॉइस, आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ और आई वॉन्ट टू स्टे इन दैट स्टेज जो हमको इतना बुरा फील करा रही है। दे एम्बेलिश द स्टोरी। एम्बेलिश क्या, एम्बेलिशमेंट हम क्या करते हैं, कपड़ों में एम्बेलिशमेंट करते हैं ना, डिजाइनर्स के पास जाते हैं, ये एम्बेलिशमेंट लगा देना, ये एम्बेलिशमेंट लगा देना उसको सजाने के लिए। अब हम अपनी यहाँ पे स्टोरी में एम्बेलिशमेंट कर रहे हैं, नए नए वर्ड्स लगा के उसको और मसालेदार बनाने के लिए। दैट इज व्हाई आई यूज दिस वर्ड, दे एम्बेलिश द स्टोरी एंड मेक इट साउंड वर्स, टू मेक इट साउंड वर्स, उसमें एम्बेलिशमेंट्स हम लगाते हैं देन इट एक्चुअली रियली वाज। एंड व्हाई डू दे डू इट? Because they don't want to change, as an excuse from changing themselves, for themselves from changing. Now what we tell people is forget the event, है ना। कोई सेन आदमी होगा तो वो क्या बोलेगा, यार भूल जाओ, उसको चीज को पकड़ के क्यों बैठे हो। Forget the event. That the events of the details of the event does not matter. What matters is learning how to overcome the emotion. अब अगला या तो बोले भैया, हम लोग सब एडवाइस तो सभी की आएगी ना, भूल जाओ, क्यों पकड़ के बैठे हो उसको। तो अगला तो बोले कि अरे इतनी बड़ी बात बोल दी, मैं भूल जाऊं, उसने मुझे इतना दुख दिया, मैं भूल जाऊं, कैसे हो सकता है, मैं तो नहीं भूल सकती। तो मत भूलो, उसको कितनी देर पकड़ के बैठे रहोगे। उस इवेंट में हुआ क्या क्या था, दैट रियली डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज उस इवेंट ने आपको जो फील करा, उस फीलिंग को आप कितनी देर तक, उस इमोशन को आप कितनी देर तक पकड़ के रखते हो, दैट इज व्हाट मैटर्स। सो व्हेन यू आर सिटिंग इन अ मेडिटेशन एंड ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर योर बॉडी स्टार्ट्स गेटिंग अराउज्ड and it starts getting frustrated and it starts getting angry and people say I am doing my meditation wrong. अब क्या होता है, हमने उन फीलिंग से अपने आप को निकाला नहीं है, और हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो कितनी बार होता है ना, हम लोगों को अंदर में हीट फील होती है, या प्रिकिंग सेंसेशंस फील होते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट सेंसेशंस फील होते हैं, कभी ठंडा फील होगा, कभी दर्द होगा। तो क्या वो जो इमोशंस हमारे अंदर में जो दबे हुए हैं ना, दे आर ट्राइंग टू रिलीज नाउ। तो हमको ये बॉडी के अंदर ये सेंसेशंस फील होते हैं, देन हमको क्या लगता है, वी आर नॉट डूइंग आवर मेडिटेशन राइट, समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन। You know what I say to them? No, 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 you are doing it right. That has to come up. वो इमोशन को बाहर निकलना है। देन जो बोलता है
जब लोग बोलते कि नहीं मेरे से लगता है कि मेडिटेशन सही नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाई दीज थिंग्स आर कमिंग आउट। कभी गर्मी लग रही है, कभी ठंडी लग रही है, कभी प्रिकिंग हो रहा है, कभी दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो मेरा मेडिटेशन दैट मीन्स राइट नहीं हो रहा है। देन ही सेज नो, आपका मेडिटेशन एकदम ठीक हो रहा है, दीज थिंग्स हैव टू कम आउट, वो कहीं दबे हुए पड़े हैं इमोशंस। सो व्हेन द एंगर एंड द फ्रस्ट्रेशन कम्स अप एंड अ पर्सन इज इन द मेडिटेशन, दे हैव वन ऑफ टू चॉइसेस। अब वो आ गया, एंगर आपका निकल के आ रहा है, एंगर के रूप में आ रहा है। कभी कभी आता है ना, मेडिटेशन में बैठे बैठे भी रोना आ जाता है, कोई मेमोरी आ गई, तो आप बोलते हो ना कितने थॉट्स चल रहे होते हैं मेरे, हम लोग सभी बोलते हैं ना कितने थॉट्स चलते हैं। उन थॉट्स में से किसी ने मेरे को यू नो इरिटेट किया है, या कोई हमको दुखी कर रहा है, या अननेसेसरी भी थॉट्स चलते हैं, तो क्या लगता है ना मेरा तो मेडिटेशन सही नहीं हो रहा है। तो अब क्या मेरे पास चॉइस रह जाती है, दो चॉइसेस हैं, टू क्विट, या तो मैं क्विट करके हटा दूं भैया मेरे को मेडिटेशन करना ही नहीं, बिकॉज इतने सारे तो थॉट्स चलते हैं, हो ही नहीं रहा है मेडिटेशन ठीक से, विच इज वॉट दे हैव ऑलवेज डन। जैसे ही हमारे सामने ये सिचुएशंस आती है तो कितने लोग भाग जाते हैं ना मेडिटेशन करते हुए, कितने लोग भाग जाते, कितने लोगों ने ज्वाइन किया था, कितने लोग रह गए, क्योंकि उनको यही लगता है यार थॉट्स चलते जा रहे हैं, मैं अपने इमोशंस पे फीलिंग्स पे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है, तो मेरा मेडिटेशन तो हो ही नहीं रहा है। जबकि द थिंग इज, मेडिटेशन के पर्पज से आप जब बैठते हो, आपने आंखें बंद कर ली, हाथ क्लैस्प कर लिए, पैर क्लैस्प कर लिए, तो आपका 100% एनर्जी सेव हो रहा है। हमारी आंखों से 80% एनर्जी हमारी डिप्लीट होती रहती है। तो जैसे हम अपनी आंखें बंद करते हैं, या 10% हाथों से पैरों से हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है, जैसे हम इन सब चीजों को बंद करते हैं तो हमारी एनर्जी डिप्लीट नहीं अब हो रही है, इट इज स्टेइंग विद इन आवर सेल्स। तो एटलीस्ट वो एनर्जी को तो हम कंजर्व कर रहे हैं। दैट इज वन बेनिफिट ऑफ सिटिंग इन द मेडिटेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग एबल टू फोकस और नॉट फोकस। एंड उतनी देर में, सपोजिंग अगर हम आधा घंटा बैठे हैं, 1 घंटा बैठे हैं, 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी अगर हमारा ध्यान लग जाता है अपनी सांसों पे, तो वो उस टाइम पे जो हीलिंग होती है या हमारा अब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का, दैट्स वर्थ इट। और वो 1 सेकंड, 1 मिनट धीरे धीरे कब बढ़ेगा, कब आगे बढ़ के वो 1 घंटा में या 10 घंटा में चेंज हो जाएगा, हो सकता है टाइम लगे, हो सकता है टाइम नहीं लगे, बट इट विल हैपन समडे। थिंग इज वी डोंट हैव टू क्विट, और उस डर से लोग छोड़ के भाग जाते हैं कि मेडिटेशन नहीं करना है यार, उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। फायदा हो रहा है हर मोमेंट। जैसे आपने आंखें बंद कर ली, हाथ पैर बंद कर ली, आपका फायदा होना शुरू हो गया। बट इफ यू आर सिटिंग विद 1500 पीपल एंड नो वन एल्स इज क्विटिंग, यू आर नॉट गोइंग टू क्विट। व्हाट ही इज सेइंग, जैसे इनकी रिट्रीट में जैसे इतने सारे लोग आते हैं, घर में अकेले हों, अकेले मेडिटेशन कर रहे हैं, जैसे इसी ग्रुप में भी अगर करेंगे ना ऑनलाइन, तो हमें कोई देख नहीं रहा है, तो मेरा मन नहीं लगा, मैं उठ के भाग गई, मेरा नहीं हो रहा मेडिटेशन। लेकिन अगर आप ऐसे रिट्रीट में बैठे हो, इतने सारे ग्रुप में बैठे हो, लाइव जहाँ पे मेडिटेशन हो रहा है, तो अर्ज तो आएगी, नहीं हो रहा ठीक से मेडिटेशन, उठो भागो बंद करो, मेडिटेशन कौन करेगा, छोड़ो निकलो यहाँ से। लेकिन इतने सारे लोग हैं, कोई नहीं उठ रहा है, तो आपको भी लगेगा थोड़ी देर बैठो यार, इतने सारों में से कोई नहीं उठ रहा है, मैं अकेले उठ के जाऊंगी, कैसा लगेगा, है ना। सो एंड इफ आई टीच यू हाउ टू लोअर द वॉल्यूम टू दैट इमोशन। अब बोलते हैं, पहली बात तो ये हो गई, अगर आप रिट्रीट जाने के फायदे बता रहे हैं, यहाँ पे ये चीज भी आ गई है कि रिट्रीट में जब आप इतने सारे लोगों के साथ बैठते हो, एक तो सबकी ऊर्जा इतनी काम करती है, सबकी एनर्जी इतनी काम करती है कि हम लोगों के अंदर वैसा होता नहीं है। बट डिस्पाइट दैट, इफ यू फील लाइक क्विटिंग एंड देन यू सी नन ऑफ देम इज क्विटिंग, देन यू कंटिन्यू सिटिंग देयर, देन ही टीचेज यू हाउ टू लोअर द वॉल्यूम ऑफ दैट इमोशन। उस मोमेंट पे जो आपके अंदर इतना स्ट्रांगली इमोशन आया भी है, सो दैट टीचिंग इज गिवन टू यू कि इसका इंटेंसिटी को कैसे लोअर करें। एंड आई टीच अ वे टू चेंज दैट। Every time you settle the body back down into the present moment and lower the volume to that anger, that is a victory, because you are telling the body it's no longer the mind, that you are the mind. Why is calling, he says, ये वाला थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा कि जब हम लोग इस तरह के थॉट्स सोचते हैं, इस तरह के हमारे इमोशंस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वी गेट एडिक्टेड। समटाइम्स क्या होता है, हम क्यों अपने दुख से निकलना नहीं चाहते, क्या मिल जाता है हमको, बार बार वही बात
वो मेमोरी में लेके आने के लिए, बार बार उसी बात को सोचने में हमें क्या मिल जाता है, वी स्टार्ट एंजॉइंग। वो जो केमिकल रिलीज होता है, हार्मोन्स रिलीज होता है, वो हमारी बॉडी को जो फील कराता है, दुखी का फीलिंग देता है, अनहैप्पीनेस का फीलिंग देता है, वी समवेयर स्टार्ट एंजॉइंग दैट फीलिंग। दैट इज व्हाई वी लिव एंड रीलिव दैट मेमोरी, लिव एंड रीलिव दैट मेमोरी। तो हमारी बॉडी गेट्स यूज टू दैट एडिक्शन ऑफ दैट केमिकल विच इज गेटिंग रिलीज्ड। तो दैट इज व्हेन हमारी बॉडी वो माइंड बन जाती है, हमारी बॉडी क्रेव करती है, अब हमको वो वाला एडिक्शन चाहिए, बिकॉज इट हैज गॉट एडिक्टेड टू दैट हार्मोन रिलीज। नाउ इट क्रेव्स दैट हार्मोन। तो इसीलिए मेरे माइंड को लेके जाती कि वो वाली मेमोरी को याद करो, तो वो याद करोगे तब वो वाला हार्मोन रिलीज होगा, देन आई विल फील हैप्पी। वो वाली जो फीलिंग आती है गुस्से वाली, ये वाली, देन आई एम गोइंग टू फील नाइस। तो इट इज बॉडी बॉडी नहीं रहती, बॉडी एक तरह से माइंड का काम करने लगती है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। दिस इज अ विक्ट्री बिकॉज यू आर टेलिंग योर बॉडी दैट यू आर नो लॉन्गर माई माइंड, that you are the mind, like I am the mind, I have that mind and my power। उस माइंड में तुमको कंट्रोल कर रही हूँ, जो अब तक ये बॉडी हैड बिकम माइंड, और ये बॉडी जो बोलती थी उस माइंड के रूप में, वही मैं करता था। उस मेमोरी को याद करके बार बार उस हार्मोन्स को रिलीव करने की कोशिश करती थी। इज इट क्लियर? वुड समबडी से, मैंने जो भी बताया अभी तक क्लियर जा रहा है? सबको ठीक समझ में आ रहा है? यस यस। या अदर्स ऑल्सो प्लीज। Yes, देती जवाब देती, और कोई जवाब नहीं देता। yes, चेतना जी। समझ में आ रहा है ये वाली बात? समझ में Yes, आई कैसे? समझ आ रहा है। यस, बहुत अच्छी लगी, समझ बहुत अच्छी लगी। हाँ, अच्छे तो बाद में लगे, पहले समझ में आए ना। अच्छा हाँ, लगा Yes, सच में चेतना समझ में जी। आया। मैडम एक क्वेश्चन, Very well. पूछना था। अब हम जो सुबह बोलेंगे हम्म, कि मैम, या बोलिए बोलिए। अब हम जो सुबह बोलेंगे नो कंप्लेंट डे, तो इसमें ऐसा बोलते हैं ना, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, ऐसा बोलने से गुस्सा करते हैं, क्योंकि गुस्सा वर्ड दिमाग में आता है और नो नहीं आती, ऐसे नहीं, बोलते हैं ना। कंप्लेन्स डे मतलब गुस्सा नहीं करूंगी वाला बात नहीं है, आप उसको उस तरह से नहीं आप नहीं, अपने यही अपने नहीं, सिर्फ यही नहीं, मैं एक क्वेश्चन ही नहीं कर रही हूँ। मैं बोलती हूँ कि ऐसा मैं सुना हूँ कि अगर मैं बोलूंगी मैं गुस्सा नहीं करूंगी, तो सबकॉन्शियस में गुस्सा जाएगी और नो नो नहीं जाएगी, तो इसलिए मैं शांत रहूंगी, ऐसे करती हूँ। तो हाँ, नो ठीक है। कंप्लेंट डे को, हाँ, हाँ, या नो कंप्लेंट डे को कैसे बोलेंगे पॉजिटिवली? नो बिना लगाकर कैसे बोलेंगे? सो मैं नो कंप्लेंट डे का मतलब ये होता है, फॉर मी तो अब नो कंप्लेंट डे नहीं रह गया, नो कंप्लेंट लाइफ हो गई है। मेरे को अपने उसमें लेके जाना है, नो कंप्लेंट लाइफ करना है, और जितना जितना वो होता है तो उतना उतना मुझे रिजल्ट्स भी दिखते हैं। सो आई एम, जब मैं ये बोलती हूँ कि नो कंप्लेंट नहीं, मेरे अंदर वो नहीं, नो कंप्लेंट मीन नो रेजिस्टेंस, कि अंदर से किसी तरह का भी किसी चीज के लिए रेजिस्टेंस नहीं निकले। सो मैं अपना आई सी माई सेल्फ, आई मेक माई सेल्फ मोर वॉचफुल। मैं अपने आप को बहुत वॉचफुल रखती हूँ कि मेरे अंदर से वो क्या फीलिंग्स उठ रहे हैं, क्या इमोशंस उठ रहे हैं। मैं मोमेंट टू मोमेंट चेक करती हूँ अपने आप को, क्या थॉट आया, ये थॉट मेरे लिए कंड्यूसिव था कि नहीं था, क्या थॉट आया, ये थॉट आया तो क्यों आया, किसी से चिढ़ है या पुरानी अच्छा। मेमोरी से कनेक्टेड है, प्रेजेंट में कुछ हो रहा है, तो उसको मेरे को कैसे हटा के आगे बढ़ना है। दिस इज हाउ माई नो कंप्लेंट थिंग गोज। ओके, तो अपने आप को खाली ध्यान रखना कि मेरे अंदर में थॉट्स क्या उठ रहे हैं, और जितना जितना करेंगे, इनिशियली बहुत स्ट्रेंथ में, बहुत इंटेंसिटी से ये उठते हैं, उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट उस इंटेंसिटी को अगर आप उतनी पावर से जब काटते हो, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार के बाद वो इंटेंसिटी इधर की कम होने लगती है, ये पावर बढ़ने लगती है हमारी, फिर ये इंटेंसिटी कम होते 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 डिप्लीट हो जाती है, एंड ये बिकम्स दिस रिमेन्स ओनली, एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस। आप जो एग्जांपल दिए थे कलिंग बेल की, वो अच्छी लगी, क्योंकि पता नहीं चलता कब कंप्लेन होता है, तो इसलिए मैं एकदम माइन्यूटेस्ट पता नहीं लेवल पे ले चलता। जाती हूँ कि कॉलिंग बेल जैसी चीज पे हम ध्यान भी नहीं देंगे, लेकिन मैंने ध्यान दिया है कि जब वो बजती थी मेरा इरिटेशन निकलता, उफ कौन आ गया फिर, तो ये भी क्यों आया, मेरा दो मेरे बार मुंह से उफ क्यों निकला। और ये चीज तो 1000 बार होती है ना, दिन में 10 20 बार होती है, तो कितनी दो बार बार हम इतना कंप्लेंट में जा रहे हैं। दैट इज वाई आई गिव दीज माइन्यूटेस्ट एग्जाम्पल। बड़ा एग्जाम्पल तो हम पकड़ लेंगे, छोटे नहीं पकड़ पाते हैं। हाँ, तो और एग्जांपल दे सकते हैं क्या? अच्छी लगी तो। हाँ, अब जैसे जैसे आता जाएगा बोलती जाऊंगी।
है ना? हाँ, ठीक है, ठीक। बहुत सारी थैंक यू, चीजें थैंक यू। मेरा तो, मैं किचन में जाती हूँ तो मेरी कंप्लेंट्स पे ऊपर कंप्लेंट्स निकलती हैं। अरे ये मेड ने यहाँ पे कैसे रख दिया, ये वाला कपड़ा से पूछा नहीं, हाँ, कपड़ा भी गलत ले लिया, तो कितनी कंप्लेंट, मोमेंट टू मोमेंट कंप्लेंट। अभी मैं बोलती हूँ नो थैंक यू, कर दिया ना इतना, उतना काफी है। अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा है खुद कर लो, उसको कुछ नहीं बोलना, उसके लिए कंप्लेंट नहीं लेके आना। बहुत हाँ। कंप्लेंट्स आती है, छोटी तो छोटी हम जब कंप्लेंट्स हम बहुत बोलेंगे तुमने क्यों किया और ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसमें टोनालिटी को देखना पड़ेगा, मैंने कंप्लेन मोड नहीं होकर नहीं तो नहीं समझ नहीं नहीं समझ नहीं समझा। देखिए डोंट गेट मी रॉन्ग, जहां पे अगर काम गलत हो रहा है तो हम उसको प्यार से बोलेंगे भी, बट प्यार से बोलेंगे। ओके, एक बार अच्छा, अच्छा, बोलेंगे, मैक्सिमम 2 बार बोलेंगे, तीसरी बार नहीं बोलेंगे। ठीक है, एक बार अच्छा, 2 बार बोल दिया, अच्छा। उसके बाद वो मानती है तो उसकी खुशी, नहीं मानती है तो भी उसकी खुशी, तब हम कंप्लेन में नहीं जाएंगे, उसके बाद हमारा कंप्लेन जाता है ना। क्योंकि अभी तक तो हम बहुत हाँ, बार हाँ, सिखा चुके, वो फिर भी गलत कर हाँ, रही हाँ, है, तो हमारा कंप्लेन हाँ, तभी निकलता है ना। हाँ, पहले हाँ, तो नहीं निकलेगा, पहले तो हम पहले हाँ, समझाने की हाँ, कोशिश करते हैं ना। तो जब हाँ, हम हाँ, कंप्लेन जाता है तब हमको ये समझाना पड़ेगा कि नहीं, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, या तो वो समझ नहीं पा रही है, या करना नहीं चाह रही, वॉट एवर इट इज हर चॉइस। नाउ इट अच्छा, इज माई हाँ, चॉइस, हाँ, मैं उसके ऊपर चिड़चिड़ाऊं, गुस्सा करूं, या अपने आप ठीक कर लूं, हाँ, या जस्ट एक्सेप्ट द वे इट इज गोइंग। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक। आया सब? थैंक यू, थैंक यू। ठीक। हाँ, थैंक यू। मैम, और कभी कभी लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो होती है हमारे अंदर रहती कंप्लेंट्स की, वो हाँ सपोज 5 साल 10 साल पहले कुछ हुआ एंड कभी वही सिचुएशन या वो आदमी सामने आ जाता है, वही हाँ चीज फिर आंखों के सामने रिवाइव होती है। हाँ जैसे आपने कहा कि माइंड वापस से वही हार्मोन्स डिप्लीट करना हाँ, स्टार्ट कर वही देता है। मेमोरीज तो में जाता है, या हाँ, तो उस चीज से कैसे निकले, अपने माइंड को कैसे समझाए, छोड़ना यार, इसको फॉरगिवनेस, क्यों दिमाग लगा फॉरगिवनेस। रही है। सपोजिंग ऐसा कोई, अब जैसे जिस इंसान ने मेरे साथ किया, तो क्या लगता है कि मैं उसके साथ खिलखिला के हंसूंगी, बात करूंगी? नो, दैट इज माई नहीं, प्रोटेक्शन। मैं प्रोटेक्ट करूंगी अपना, क्योंकि मेरे लिए सेल्फ लव भी तो बहुत जरूरी है। थोड़ी ना मैं हमेशा इसको रोने देती रहूंगी। आज उसने माफी मांग ली है मेरे से, एंड आई फील, बिकॉज मेरे को दूसरे दिन ही लगा कि उसके चेहरे पे वो वाली फीलिंग थी। ही वॉज ठीक नॉट। है, वो अपोलॉजी आपने कहा, वो अपोलोजाइज मांग लिया इसलिए आपके ये फीलिंग आई, लेकिन अगर कभी होता है ना रिलेशंस में कि वो सॉरी, सामने वाला सॉरी नहीं है, हाँ, एंड वी आर अपार्टेड फ्रॉम द फैमिली या एंड वही चीज या दिमाग में जाता है, तो उस चीज से बिल्कुल। कैसे निकले। फिर भी हमारा काम क्या है? मेरे लिए देखो, अगर मैं उसी जोन में रहती हूँ तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा नुकसान हो रहा हमारा है। ही हो रहा है। क्योंकि मैंने इतना सब ये एक्सप्लेन किया, ये तो बहुत साइंटिफिक वे में, बहुत ही ज्यादा डीप में एक्सप्लेन करते हैं। इनकी मैं बुक पढ़ रही हूँ तो पगला जाऊँ, कम से कम 4-5 बार जब तक नहीं पढ़ूंगी, पूरा अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। दैट इज वाई टेक छोटा छोटा ये इसमें भी कुछ कुछ जो टेक्निकल टर्म्स है अभी भी मेरे को ग्रेस्प नहीं हो पाते, बट ओवरऑल जिस समझ में आया, ये बात ऐसे हो रही है, हमारी बॉडी कैसे उसको, हार्मोन्स को क्रेव कर रही है, तो उनका क्या नुकसान हमारा होता है। सपोजिंग ऐसी सिचुएशन आ रही है, अब उस सिचुएशन से हम दो ही तरह से निकल सकते हैं। ब्लेस करो, बिकॉज अगला इंसान, हमको पहले तो क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा मेरे लिए। मैं अपना ये सिचुएशन बता रही हूँ कि भैया देखो, घर वालों का तो फिर भी, घर वाले या दूर के रिश्तेदार, फिर भी इंसान एक बार सह लेता है कि कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट है जिसकी वजह से हमको ये होल लाइफ निकालना है। बट ये इंसान दूर दूर तक, इससे कोई रिश्ता नहीं है, खाली फ्रेंड्स ग्रुप में भी बहुत बहुत ही दूर का, फ्रेंड भी नहीं बोल सकते उसको, फ्रेंड्स के थ्रू ऐसे करके, वो मजाक मजाक करने की आदत है, एंड ऐसे करके हुई बात। हाँ, फ्रेंड्स बोल सकते हैं एक तरह से, बोला जाए, बट उस तरह की घनिष्ठता वाली फ्रेंडशिप नहीं है, क्योंकि एक ग्रुप है हम लोगों का, मिलते जुलते रहते हैं, तो वो ग्रुप में जैसी रहती है वैसा। ऐसे लोगों से मेरे पास आएगा कुछ, मैं तो कभी इमेजिन ही नहीं कर सकती। तो आया है तो दैट मीन्स कुछ तो कार्मिक अकाउंट है, और वो भी बेचारा भी गलती में बोल गया है, मतलब वो पी भी लिया, उसके चक्कर में हो गया, या उसकी कंट्रोल नहीं रहा अपनी भाषा के ऊपर, बोल गया, बाद में उसको बुरा भी लग रहा है। सपोजिंग ऐसा इंसान जिसको बुरा नहीं लगता है, तो मेरा क्या है अंडरस्टैंडिंग, मेरे को तो ये अंडरस्टैंडिंग, मेरा कुछ तो है। हर सिचुएशन मैंने ये तो सोच के ही रखा है कि मेरे जीवन में जब जिस मोमेंट जो कुछ भी आ रहा है, मेरी अपनी डूइंग है, मेरा अपना क्रिएशन है, मैंने अपने सोल प्लान में उसको लेके मैं आई हूँ। आई वॉज वंडरिंग, दिस इज पार्ट ऑफ माई सोल प्लान, इसको मैं लेके आई हूँ, ये भी मैंने किया। कि मैं बार बार बोलती हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत चैलेंजेस, तो मैं कितने चैलेंजेस और लेके आई चेतना, ये भी तुमने किया था, ये भी चाहिए था तुमको। सो दिस इज पार्ट ऑफ माई सोल प्लान। और जैसे ही मेरे थॉट में अंदर में आता है, अब सोल प्लान अगर हम समझें, बहुत जो लोग श्याम सर एक बात बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट बुक, कि जो लोग हमारा नुकसान करते हैं,
अब उनके सोल लेवल पे हमने जब उनसे बात की, सारे के सारे सोल्स हैं ना इतने सारे, हम उनको बोलते हैं भैया आप मेरी मम्मी बनोगे, आप मेरे पापा बनोगे, आपको मेरा बेटा बनना है, आपको मेरा पड़ोसी बनना है, आपको मेरा टीचर बनना है, दैट टीचर बन के आपको मेरे को ये एक्सपीरियंस देना है, या तो प्यार वाले एक्सपीरियंस या डांट वाले या मार वाले, जो भी। आपको फ्रेंड बनना है, आपको दूर का रिश्तेदार बनना है, आपको ये बनना है, बट मेरे को ये एक्सपीरियंस चाहिए जिससे कि मैं अपने अंदर ये पेशेंस की, कंपैशन की फीलिंग्स जगा पाऊं। तो उसके लिए मुझे ये एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे ना ये वाले बहुत गलत वर्ड सुनने हैं आपसे, विल यू बी एबल टू डू इट फॉर मी? अब सारे के सारे वहां पे सोल लेवल पे क्या है, हम लोग सब एक्टर्स हैं, एक्टिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, हम लोग की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, वी आर डिसेंडिंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे हम ड्रामा ही खेलने आए हैं। सब एक्टर्स को मैंने बोल दिया, सबको हमने रोल पकड़ा दिया, मम्मी तुम्हारा ये रोल है, मेरा ये नाम होगा। मेरे गाइड्स ने मेरे को जैसे बताया कि तुमको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये वाली सिचुएशंस हैं, ये सिचुएशंस के थ्रू तुम ये वाली वर्च्यूज को डेवलप कर पाओगे, तब जाके तुम्हारा ग्रोथ होगा एज अ सोल। तब मेरे को लगता है कि अब इनमें से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उनमें से कि ये बहुत टफ रोल है, इसमें बहुत गंदगी होने वाली है आपके और मेरे बीच में, विल यू बी एबल टू डू इट? तो उसमें कौन करेगा? जो बेस्ट एक्टर होगा वही तो टफ रोल चूज करेगा ना। आज जिसने मेरे को बहुत इतनी टफ एक्सपीरियंस दी है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्टर है, या मेरा सोल लेवल पे, तो सोल लेवल पे तो हम ही सभी एक्टर हैं। जैसे मूवीज में होता है, किसी ऐसे एक्टर को रोल दिया जाता है ना जिसके अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो बहुत अच्छी एक्टिंग करके उस रोल को अच्छे से निभा जाए, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो सोल लेवल पे वी आर ऑल एक्टर्स। तो हम किसको वो एक्सपेक्ट ये करते हैं जिस सोल से मेरा बहुत डीप कनेक्शन होगा, दिस इज अ टफ रोल, विल यू बी एबल टू डू इट फॉर मी दिस लाइफ टाइम? तो जिससे मेरा वहां पे उस लेवल पे मेरा बहुत प्यार है, वो एक्सेप्ट करता है कि चलो तुम्हारी ग्रोथ के लिए मैं ये वाला रोल लेने के लिए तैयार हूं। अब क्या आ रही है फीलिंग, ये बात सुन ली तो? कि सोल लेवल पे तो हम लोगों का बहुत प्यार है, यहाँ तो हम टेम्परेरी आए हैं, यहाँ पे हमारा खाली वो थोड़ा सा कनेक्शन ऐसा हो गया है, तो आई जस्ट हैव टू ओवरलुक इट। और अगर मेरा अंदर नहीं वो कर, अच्छा ओवरलुक करने के लिए इस लेवल पे भी अगर हम ह्यूमन लेवल की भी बात करें तो ब्लेसिंग एक रास्ता है ना। वो नहीं समझ पा रहा है, मेरे को समझ में आ गया सोल प्लान का क्या होता है, कार्मिक अकाउंट क्या होता है, उसको नहीं पता है। वो बेचारा तो अपनी बेहोशी में है, वो बेहोशी में ऐसे बिहेव कर रहा है। अब जो एक इंसान बेहोश होगा, नशे में होगा, वो आपको कुछ बोल जाए तो हम लोग माइंड नहीं करते ना फिर उसका, वो नशे में है, उसको क्या करेंगे, ब्लेस करेंगे, अरे अपने नशे से निकल पाए। मेरे को तो कर दिया मैंने, बर्दाश्त कर लिया, किसी और को बोलेगा तो शायद नहीं बर्दाश्त करेगा, वो इसको नुकसान कर देगा। तो वैसी सिचुएशन नहीं आया इसके लिए, उसको ब्लेस करेंगे, उसको वो करेंगे कि तुम अपने नशे से निकल आओ, मेरी ब्लेसिंग्स है तुम्हारे साथ। एंड मेरे को जो हर्ट कर जाता है तो मैं फॉरगिव कर देती हूँ, फिर उसको, फिर खुद को फॉरगिव कर देती हूँ कि मैंने खुद वो हर्ट फील किया। सो दैट्स अ प्रोसेस, ये पूरा पूरा ये सारे सारे स्टेप चलते हैं मेरे अंदर, ये सारे के सारे, सारा दिन यही सब चलता है माइंड में। जैसे ही कुछ आया ना, ऑटोमेटिक विद इन 2-3 सेकंड सब कुछ हो जाता है, फॉरगिव, ब्लेस, आउट, मूव। अब ऐसी प्रैक्टिस हो गई है कि वो 2-3 सेकंड के अंदर सारी कहानी खत्म हो जाती है फिर। Okay. क्लियर? We are ending the session or is there still time? Another 5-10 minutes and then we will end. I have a question to ask. बोलो। Should I ask now? Yeah, no problem. Please ask. I think So we will carry it on tomorrow also. Yeah. Okay, I just wanted to ask one thing. Like basically, I have seen you've been like from some journey we've come over here. First, it started with our gratitude practice. So, what have you realized? Just your experience, and we want to know. ज्यादा हमें ग्रैटिट्यूड वाली प्रैक्टिसेस बहुत जल्दी सोल रियलाइजेशन और ये पथ पे लेके जाती है कि मेडिटेशन इज अ फास्टर रूट। सॉरी, मेडिटेशन के अंदर भी बैठ के हम क्या करते हैं, मेडिटेशन के अंदर बैठ के भी हमको अंदर में वो फीलिंग्स कैसे आती हैं, ग्रेटिट्यूड तो करते हैं ना उसमें भी, है ना। हाँ जी। तो ग्रेटिट्यूड इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ आवर एवोल्यूशन। बट जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारी वो सारी एनर्जीज कंजर्व होती हैं। देन वो ग्रेटिट्यूड एंड मेडिटेशन का कॉम्बिनेशन जो होता है, दैट मेक्स थिंग्स फास्टर, बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं। फिर वही चीजें हम उसमें भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, है ना। वो एंड देन वो दोस फीलिंग्स ऑफ लव एंड जेंटलनेस एंड ये सारी की फॉरगिवनेस, वो सारी की सारी बढ़ती जाती है।
द मोर यू आर सिटिंग इन द मेडिटेशन, अपने अंदर के साथ फिर कनेक्शन बैठता है। ग्रेटिट्यूड हम ऐसे बाहर से भी कर रहे हैं, उससे भी हमारा अंदर से कनेक्शन होता है, बट आई फील मेडिटेशन में बैठने से थिंग्स ग्रो मच फास्टर एंड मच स्ट्रॉन्गर, मच डीपर। Okay, thank you so much. थैंक यू। चेतना जी, एक क्वेश्चन मेरा भी था। हाँ बोलिए, कौन? नाम बोलिएगा मुदिता। प्लीज, नाम बोलिएगा मुदिता। एंड वीडियो ऑन कीजिएगा प्लीज। मुदिता अग्रवाल। हाँ मुदिता बोलो, वीडियो ऑन करो मुदिता, एक मिनट। बोलिए। हाँ, चेतना जी, जैसे होता है कई बार फॉरगिव करते हैं किसी पर्सन के साथ कुछ ऐसा हुआ, बट वो कभी फिर वो सामने आता है तो फिर अंदर से चलने लग जाता है, इसने मेरे साथ ऐसे किया, वो फॉरगिवनेस हमने फॉरगिव अंदर नहीं, से। दैट मींस हाँ हमने वो फॉरगिव नहीं किया, हाँ वो अंदर से हो नहीं forgive पा रहा है, अंदर से वो उसको फॉरगिव कर ही नहीं पा रहे हैं, तो मतलब इतना क्या इतना करें। सब अभी जो एक्सप्लेनेशन दिया उसके बाद भी फॉरगिवनेस नहीं आएगी? हम नहीं पता सोच नहीं, पाएंगे वो कि सोचते फिर से हैं हम लेके कि आए हैं? नहीं, फिर से करेंगे अब की, मतलब ये बात आज लगी कि शायद वो पर्सन के साथ मेरा सोल लेवल पे बहुत अच्छा कनेक्शन रहा होगा। शायद नहीं है, है 100% है। दैट इज वाई या दैट पर्सन हैज टेकन अप दैट रोल, कि तुमको तुम्हारी लाइफ में, नहीं तो विलेन का रोल कौन लेने चाहता है भाई? आज मूवी में हाँ, भी देखने जाओ ना, विलेन का रोल कोई नहीं लेने चाहता है ना, सबको तो हीरो यस का रोल यस, चाहिए ना। तो हाँ उसने एक्सेप्ट किया मेरी रिक्वेस्ट को और विलेन का रोल लिया है, क्योंकि मैं ग्रो कर सकूं। वही, मेरे क्योंकि अंदर बार से तो बार सारी, उसी पर्सन सालों की के साल साथ। में अपने इन लॉज को नहीं माफ कर पाती थी, बट ये हाँ सुनने के बाद मैंने ऐसे निकल गया, सब क्लीन हो गया अंदर से स्लेट, कि यार वो तो मैम मेरी यही तो ज्यादा इन लॉज के बड़ी पास से। ही आके तो सबका चक्कर आ जा रहा है, इसी से तो निकलना है मैम, इन लॉज को लेके ही तो सबका परेशानी है। तो अब तो नहीं ये रहनी चाहिए ना, इतना जब हम समझ लिया तो उसके बाद तो नहीं रहनी चाहिए ना। मेरा तो फ्रेंड के साथ में, मतलब वो फ्रेंड के साथ बार बार मिलती हूँ, मुझे बार बार पता नहीं क्यों वैसे आ जाता है, फिर सोचती हूँ कि नहीं, मतलब मैं इसको बहुत फॉरगिव एक करती चीज हूँ। और बोलूंगी यहाँ पे, आप हाँ फ्रेंड का बात बोल रहे हो, आई डोंट नो हाउ डीप द कनेक्शन इज। देर आर सम प्लेसेस जहाँ पे हम रिश्तों को छोड़ के नहीं जा सकते, जैसे हमारे ब्लड रिलेशनशिप्स हैं, हमारे इन लॉज हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, या थोड़े दूर के भी रिलेशन हैं, हम छोड़ के भाग नहीं सकते, वहां पे हमारे पास चॉइस नहीं होती है। बट देर आर प्लेसेस जहाँ पर हमारे पास चॉइस होती है, हम छोड़ के जा सकते हैं। जैसे अब इन साहब के साथ मेरा हुआ, हाँ, तो वहां पे उस दिन भी मैं छोड़ के उठ सकती थी, मैंने उस मोमेंट पे ये डिसीजन लिया कि नहीं, इस मोमेंट पे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन बाद के लिए मेरा डिसीजन वेरी क्लियर है कि भैया तुम तो अपने माइंड से ये गलतियां करते रहोगे, और मेरे अंदर भी, मैं 3 दिन तो रोई ना, 3 दिन के लिए तो मेरी नेगेटिव हो गई एनर्जी एकदम कंप्लीटली। वो कब क्षण आएगा कि वो आएगी बात और मेरे कान पे ही नहीं छुएगी और मैं ऐसे हवा में उड़ा दूंगी, उसमें अभी शायद टाइम लगेगा, मेरी जर्नी अभी बाकी है उसके लिए। तब ऐसे लोग आएंगे तो शायद मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन आया कौन नहीं आया। लेकिन आज के दिन अगर ऐसा इंसान मुझे इम्पैक्ट करता, कहाँ से आवाज आ रही है? आज के दिन अगर ऐसा इंसान मुझे अफेक्ट करता है तो मेरे लिए इतना खासियत मायने थोड़ी ना रखता है, मैं तो निकलूंगी वहां से कंप्लीटली आउट। और ऐसे मैंने बहुतों को छोड़ा है, बहुतों को छोड़ा है। मेरे लिए अपनी पीस, अपनी एनर्जी, अपने उस जोन को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं है, मेरे फ्रेंड्स के नाम पे बोलोगे कोई नहीं है, एंड आई डोंट गिव इट अ डैम। ऐसे फ्रेंड्स मुझे क्यों चाहिए जो मेरे को दुखी फील करा दें, जो मेरे को समझ या नहीं। हाँ, क्योंकि मैं आई बार डोंट बार केयर, जब भी मैं ये उनसे क्या मिलती फ्रेंड, ये हूँ। फ्रेंड थोड़ी ना होते हाँ हैं, ये तो फ्रेंड के नाम पे धब्बा हैं। वही, तो ठीक क्योंकि है, मैं जब जो भी भी है, बार बार, हाँ इनफैक्ट आई मतलब वो शुड होता नॉट है बी कि इवन सेइंग दैट, नो। हाँ, वो मतलब मेरे को बार बार वो लो उसमें ले जाते हैं, बहुत 2-3 दिन तक मैं निगेटिव व्हाई डू जोन आई में हैव हो टू बी इन जाती हूँ। दैट कंपनी? अगर मेरे पास चॉइस है मैं वहां पे से हट सकती हूँ। मैंने बहुत डीप डीप फ्रेंडशिप, जो ना सो कॉल्ड बहुत डीप फ्रेंडशिप, ऐसे छोड़े हैं, ऐसे ऐसे आउट। यू आर नॉट इम्पोर्टेंट टू मी। फिर इम्पोर्टेंट ऐसे हो, लगता है बहुत कि इम्पोर्टेंट हो। आज के दिन तो लोग ये एहसास ही नहीं कर पाए कि अकेले कैसे, फ्रेंड्स के अलावा तुम मूवी भी नहीं जा सकते, फ्रेंड्स के अलावा पार्टी नहीं कर सकते। नहीं चाहिए मुझे पार्टी, मूवी देखनी मैं अकेले चली जाऊंगी, पार्टी करनी मैं अकेले कर लूंगी। आई हैव दैट बस स्ट्रेंथ, मैं यही कर सकती यही हूँ हर कुछ सिचुएशन, अकेले। हाँ एक्चुअली में यही सिचुएशन आ जाती थी कि अकेले कैसे करेंगे, अरे अकेले हाँ, से तो कैसे वही लाइफ। अकेला, हाँ ये जर्नी तो यस अकेले की है बाबा, जर्नी तो यस अकेले की यस है। यही डर से लोग कॉम्प्रोमाइज करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। आई डोंट कॉम्प्रोमाइज, आई डोंट यस कॉम्प्रोमाइज एट द सोल लेवल। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। किया था 15 साल तक, एक मैं किटी ग्रुप में थी, 15 भी नहीं, 17-18 साल तक। देन ऐसे छोड़ दिया, ऐसे 17-18 साल की दोस्ती कम नहीं होती है ना, ऐसे छोड़ा, आउट।
अभी भी मिलते हैं तो स्माइल से बात कर लेते हैं, जो भी मिलता है, कोई ग्रजेस नहीं है, बट आई डोंट लाइक द एनर्जी ऑफ योर ग्रुप एंड आई एम मूविंग आउट। वो 15-17 साल तो मैंने कॉम्प्रोमाइज ही किया था ना, Yes, yes. बट एक लेवल के बाद लगा कि नो मोर कॉम्प्रोमाइजेस, आई एम मूविंग आउट। आई हैव बीन क्वाइट टफ इन दिस रिगार्ड। मैं किसी के केयर नहीं करती हूँ, मैं किसी को भी कभी भी छोड़ सकती हूँ। आप लोग जानते हो, जो पुराने लोग जानते हो मैं कहाँ कहाँ क्या क्या छोड़ के आई हूँ, है ना? कई लोग Yes. जानते जो इस ग्रुप में बैठे हैं कि मैं कितने ग्रुप्स ऐसे छोड़ के आई हूँ। बहुत हाई पोजीशन पे थी मैं, सब कुछ मेरे हाथ में Yes. था, बट मैं ऐसे छोड़ के आ गई, ऐसे। चेतन जी, मुझे एक पूछने का था। या बोलिए। No, actually, I have not got insulted or anything. There is one friend of my daughter, and in America, somehow I don't find his vibes. I find it very negative. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है उसके presence में. So I have been avoiding it because I don't want to spoil my peace of mind. Yeah. When recently my daughter was trying to compel me, saying that he's a friend of mine, you should try to accept, because I mean, he's my friend and everywhere I can't tell him not to come because you can't tolerate him. Then I feel like telling her, you go ahead, go wherever you want, but don't involve me because it spoils my peace of mind. Why? What is wrong with him? I can't say what is wrong. His total behavior brings a lot of negativity, that he's taking my daughter for a ride by trying to show he's very pious and he's talking all bullshit, trying to mesmerize people. Let's not get into the detail. No, See, I'm asking, how can I remove that negativity from my mind? That's what I want to know. That is what, all these things we are learning, these are all soul plans, Now we are, who is this person? Like your daughter's friend? Friend, not even related to us. He's totally from a different state or India. We have no connections earlier. He's just a friend. I'm not getting clear. It's not clear. Like, who is this? Who is bothering you? He's just a friend. The friend of my daughter. Yeah, friend of your daughter. Friend. Yeah. Yeah. Now, because when I went and stayed with her. How old is your daughter? Your daughter is a grown-up daughter, no? This is 42. Yeah. 42. So she has every right to make her decisions, no? You cannot tell her. Beyond an age, about 20, uske baad we don't say anything to our children. Now, what it is like, we of course always try to guide them, keeping their, welfare in our mind. But if their mind, their soul is not accepting it, we will just let them be, because their experience. Yeah, no, that I've given up. But I don't want to be pulled into that, in his presence. But are don't you insist I should be there. With her? Are you staying with her? No. We are going to States now shortly. Yeah. So she was trying to tell me that if he is coming anywhere, I should try to accept him. So that is what I'm saying. You're going to stay with her there? For a few weeks. Yeah, whatever they do, even if it is for one day, you're going there and staying with her, no? So you have a choice. Either you don't stay with her. This is what you can do. If you have to stay with her, then you have to accept whatever is going on in her life and be, cordial. Isn't it? You cannot show your displeasure to that person, because when your daughter and that person, both, they are happy among themselves. When you are going to their place, they are not coming to your house, no? No, he is a visitor. He is not constantly there. He comes and goes. It's okay. That is what I'm saying. No, what is wrong if I avoid? If I'm not happy, why should I show I am not able to withhold that negativity of his presence. I feel like being away. Yeah, let them enjoy. You don't have to be in his presence all the time. But if she expects कि आप थोड़ी देर आके 2 मिनट उसको hi hello बोल के जाओ, that much, you can, or that I've been doing. हाँ, तो ठीक है. उसके बाद you have your choice. You stay in your room. You don't be in their company. Why should you be in their company? No, that's what I've been doing. Yeah. That's what I was doing, but she was getting angry with me. I said, she is expecting you to be there all the time whenever he's around. Yeah, no, to go for a holiday, he'll also be accompanying. I feel like saying, no, I don't want that holiday because I can't be at peace, But why that negativity with him, I'm not able to understand, because I have no connection with him. I have not interacted much with him. I have just observed it. But his presence, is it again a soul plan that when you meet some people that you just can't? Anything. That we should not, if you just see what is going on in your inside your heart,
And if you can correct it, do correct. Otherwise, just let it be. We should not even go into the details ki why this is happening, why this is happening. It's happening, it's happening. उसको ठीक करना है तो No, आप कर it सकते was हो तो too करो. much bothering my peace of mind. नहीं, then Even don't I'm allow trying to anything to meditate. don't allow anything to bother you too much. That is what I'm saying. If you allow anything to bother you too much, then it is only a botheration for the while, and then it turns into a bad mood, and then it turns into a bad temperament, and then it turns into a bad personality. So your decision, what you want to do with your life. You want to turn into a bad personality, angry personality, irritable personality, your decision. Or just take precautions and keep yourselves away from there. If you have taken the decision, you don't want to go for the holiday, stick to that decision, whatever you like. She is not going to force you कि आपको आना ही पड़ेगा, So see, whatever the situation, unless one is there in the situation, one cannot understand it fully. So, and जितना हो सके अपने आप को you have to protect. And जहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत जाके मिलना and करना, that much you can do. And rest you see what you should do. Don't get into whys and hows कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ. निकलने का रास्ता हमें पता चल गया, and if Yeah, somebody, thank you, Ji. yeah, we need to find the way out. And even if there is again, gratitude plays a huge part. If that person who's making your daughter so happy, so we will, my mind is focused on maybe you're finding something which is not right with that person, or maybe whatever it is. So you can talk to yourself that can I find something in him which I can be grateful for. Gratitude also plays a huge role, So moving your focus away from the negativity and bring it, when you are in a gratitude mode, you bring it back to the positivity. So as things change inside you, things change around you. That is how this principle works. So try and find something in that person. Maybe that. Who is this? Chitra ji, sorry to interrupt, but. 1 minute, please, Manisha ji. Let me complete. I'll forget. What was it? दूसरे में gratitude ढूंढ लो मैम. No, it's expect one gratitude. You say that quality. Yeah. Find a quality Find of at gratitude least and one quality in that person. Look for something where you can be grateful for. If he is making your daughter happy and your daughter is happy in his company, that should be one reason for you to be grateful for. Hai na? There may be some other things also in him which you have to go deeper and find. And when you do indulge in that practice, slowly you will see this negative feeling that you are harboring for him, that will dissipate. And you will suddenly start feeling good about it. And 1 or 2 things, whatever you feel gratitude about him, keep repeating within yourself. And then find things around yourself. In your daughter, in your house, in her house, whatever it is, look for the things which are, which you can be grateful for. And that really works wonders. So what I can see on your face, I don't think you are trusting what I'm saying. But once you do it, once you do it, you will see the results. You have to do it. You have to do it. Okay, thanks, Chetna ji. Once you do it, you will be able. Yeah. Am I not right when I caught you in that mode that you was feeling ye kya bol rahi hai? This doesn't work. No, I was just thinking, because sometimes some things are not. Yeah, because you have not learned this practice, and this is the first step. Perhaps this is how you should start. Yeah, thank you Do it so that much. way. Yeah. Do it that way, and then perhaps a few, but do it focused in a very focused manner and consistently. Look for the things. Yeah. If I'm drinking this water, I'm so grateful for this water. I'm so grateful for this glass. I'm so grateful for the people who made this glass. Variety of things you can be grateful for. I'm so grateful for this Zoom platform. So grateful for this, laptop. So grateful to my son who bought me this laptop. I'll go on endlessly grateful. And once you are in that mode, that feelings, initially you have to do it. You have to do it mechanically because it doesn't come from within. But once you start doing it mechanically, 1 din, 2 din, 4 din, 10 din, slowly starts coming from your heart. And when your heart starts feeling that gratitude and that love, then things change around you. Then you will tell me, wow, I started liking that guy, whatever. You might come and give me a nice sharing for that.
and I'll wait for it if you practice it. Yeah. Chaliye, I think I should stop it now. I'm expecting Thank you so guest much. also. So इसके immediately बाद there is a guest coming about 10-15-20 minute के बाद. So I think we are done with the question answers also. So we meet either 3 or 3:30. आपने बहुत अच्छी एक बात शेयर की आज हमारे साथ हाँ चेतना जी। हाँ बोलिए। थैंक यू सो मच। आज आपने जो एक न्यू चीज बताई है, जो आपने बोला ना कि जो लोग हमें बहुत परेशान करते हैं, और वो पास में हम उनके साथ एक एग्रीमेंट करके आते हैं। हमारे यस, तो ये एक बहुत अच्छी चीज आपने बताई है। थैंक यू सो मच। मतलब अब इससे कुछ चीजों में हमें फॉरगिव करना थोड़ा और इजी हो जाएगा। इजी हो जाएगा, उससे प्यार आएगा। अरे यार तुम तो मेरे दोस्त का रोल चूज किया है यार, आई लव यू, लव यू आएगा उसके, यू नो, रिलेशनशिप चेंज होंगे। थैंक यू सो मच। यू नो, सो Tomorrow what time? जब बोलते हैं ना सोलमेट एंड सोल प्लान, तो सोलमेट खाली वो नहीं होता जो हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। सोलमेट वो है No, tomorrow what time? बुरे एक्सपीरियंस दे रहा है, यू नो। सो एवरीबडी इज अ सोलमेट, सोल फैमिली, जिनके साथ भी हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है। यू ऑल आर पार्ट ऑफ माय सोल फैमिली, सो दैट इज हाउ वी आर ऑल कनेक्टेड, यू नो। Chetna ji, what time tomorrow? So much. Thank you, Chetna ji. Thank you. Can what you time share tomorrow? recording? One sec, एक मिनट प्लीज। शीला जी कुछ बोल रही है, मैं सुन लूं, उसके बाद सुनती हूँ सुनिधि। हाँ, What time tomorrow? Tomorrow either 3 or 3:30. I'll decide, you know, because I have things after things happening. So depending on that, I'll decide the time. Okay. Yeah. Okay, thank you. Thank you. हाँ, सुनिधि बोल। Ma'am, I want to One talk sec. to you over Let the me phone. one sec. Let me just stop this chat. Recording of today's session. कौन बोल रहा है? बोलिए पहले। हाँ, सुनिधि वीडियो ऑन करो प्लीज। वीडियोस नहीं ऑन होते, मेरे को लगता है मैं दीवारों से बात कर रही हूँ। सॉरी, मैं सुनिधि गोयल बोल रही हूँ सिलीगुड़ी से। आप रेडियो आज का सेशन का रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हो? रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करूंगी। एक्चुअली मुझे लगा, अच्छा कर देती हूँ, चलो आज का कर देती हूँ। आज का कर दीजिए चेतना जी, वापस से सुनना बहुत जरूरी है। काफी कुछ मिस हुआ मुझे लग रहा है, तो इसीलिए। ठीक है, चलो आज का कर देती हूँ। चलो, so that some more people get motivated and join in these precious sessions. I don't know how much value people do get from these, but होता है ना, लोग डरे भी रहते हैं कई लोगों से। कोई लोग डरा देता है कि मेडिटेशन मत करो। मेरे को सुना ही पड़ा था ये बात कि कोई ये ऐसी अफवाह फैला रहा है कि मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे बहुत कुछ होता है, हम लोगों का तो जीवन बदल गया। बहुत कुछ होता है, कितना प्यार, अपने आप से प्यार हो गया, लाइफ से प्यार हो गया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मेडिटेशन से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। एक क्वेश्चन था। किसका? बोलिए, कौन है? नमस्कार, मैं नेट थोड़ा वो है, तो मैं ऑडियो आपका नाम बोलिए ना प्लीज। आपका? मैं गीता बोल रही हूँ। हाँ, गीता बोल रही हूँ। गीता कहाँ से बोल रहे? गीता दिल्ली से हूँ वैसे मैं। हाँ, बोलिए। आपने जो बताया सोल प्लान था, इसलिए मैं हमें आया है। तो आपका जो था ना कि मैं फिर दोबारा नहीं, उसमें मुझे मालूम है कि फ्रेंड्स हैं तो नीड नॉट बी इन माय लाइफ। तो क्या दोबारा हमको लेसन नहीं मिलना है, या क्या मतलब हमें अवॉइड करना है इन लोगों को? नहीं, अवॉइड नहीं करना है। देखिए, वहां पे मेरे पास चॉइस है ना। जैसे मैंने बोला कि 2 तरह की रिलेशंस होती हैं। एक रिलेशन ऐसी होती है जहाँ पे मेरे पास चॉइस नहीं है। आज अगर सपोजिंग फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बेटा मेरे साथ मिसबिहेव करता है, तो मेरे पास चॉइस थोड़ी ना कि मैं उसके साथ रिलेशन काट लूं, चली जाऊं। नो, आई डोंट हैव दैट चॉइस। ये अलग बात है, लोग कर लेते हैं, दूसरी बात है। मेरे पास वो चॉइस नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ मेरा ब्लड रिलेशन। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई भी ब्लड रिलेशन हो सकता है, या इन-लॉज हो सकते हैं। कई जगह हमको लगता है ना कि छोड़ के निकल जाओ यार, इतना बर्दाश्त करने से तो। बट आई डोंट हैव दैट चॉइस हियर। बट जहां पे वो फ्रेंड्स वाली बात आती है, तो मैंने अपना बताया ना कि मेरा एवोल्यूशन लेवल अभी इतना है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। मेरे को रोना आ गया ना। सोल प्लान मैंने आज थोड़ी ना पढ़ा, इधर आने के बाद थोड़ी ना, 3 दिन में थोड़ी ना पढ़ा। मैं काफी टाइम से पढ़ के और समझ चुकी हूँ, और उसको इम्प्लीमेंट भी करती हूँ लाइफ में। बहुत चेंजेस आए, बट बावजूद उसके भी तो मेरे को इम्पैक्ट कर गई वो बात। मेरे को तो जब ऐसा कुछ आता है, तो एज आई सेड, मैंने अपनी प्रेयर भेजी है इस यूनिवर्स को कि दूसरों की कही गई अच्छी बातें मेरे को खुश भी करती हैं, दूसरों का दिया हुआ दुख मुझे आज भी दुखी करता है। नाउ आई एम प्रेइंग टू यू टू टेक मी आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। इस फीलिंग से मैं कैसे निकलूं बाहर, कैसे मैं अपनी पावर दूसरे को नहीं दे पाऊं। बट आज के दिन तो मेरी वो स्थिति नहीं है, मैं पावर दे देती हूँ ना लोगों को।
आज भी मैं विक्टिम मोड में चली जाती हूँ ना, तो उस विक्टिम मोड में आगे से नहीं जाऊं, उससे बचाने के लिए मेरे पास फिर उपाय भी है। या तो मैं कैरी ऑन करूं उस सिचुएशन में जहां उस पर्सन के साथ, अगर करना पड़ेगा तो मेरे को पता है मैं हैंडल भी कैसे करूंगी, अगली बार तो मैं फिर उसको दोस्त सुना भी दूंगी इफ दैट इट कम्स टू दैट सिचुएशन। एक बार सह लिया, बार बार नहीं सहूंगी। सेल्फ लव भी है ना, क्योंकि मेरी तो एनर्जी बहुत डिप्लीट हो गई 3 दिन तक। टेरिबल लॉस, टेरिबल लॉस। सालों से मैंने नहीं फील किया जितना मैंने ये 3 दिनों में फील किया था। तो मुझे अपने आप को तो प्रोटेक्ट करना है ना। इस प्रैक्टिकल प्लेन में जब हम हैं तो हमको अपने लिए तो वैसे प्रैक्टिकली जब हम वो लाइफ लीड कर रहे हैं तो अपने वो टूल्स तो हमको अपने यूज करने पड़ेंगे ना, जिससे हम अपने आप को भी प्रोटेक्शन में रख पाए, अपने आप को डिप्लीट नहीं होने दे। तो उसके लिए एक रास्ता मेरे पास ये भी है कि मैं वहां से हट जाऊं। फॉर द टाइम बिंग नहीं हट पाऊंगी बिकॉज डिस्कनेक्शन इज देयर फॉर सम टाइम। जब तक रहेगा तब तक भी बस खाली हाय हेलो भी होगी, ऑफ कोर्स एक मर्यादा के लेवल पे सब कुछ होगा, बात भी होगी, बट खाली उतनी जरूरत भर की, उस लिमिट से बाहर नहीं जाने दूंगी। मेरा क्वेश्चन वही था कि अगर दोबारा मतलब सामने आता है या उसी ग्रुप में बाय चांस मिलते हैं तो कैसे आपका रिएक्शन, यही मैं जानना जैसे मैं चाहती इसी पर्सन का एग्जांपल देती हूँ, है ना, मेरे हाँ सामने आएगा तो मेरे अंदर गुस्सा नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं निकल गई वहां से कंप्लीटली। अब मैंने अपने आप को बता दी, ये मैंने सोल प्लान किया था चेतना, तुमको उससे कुछ बातें सुननी थी, कुछ सीखना था इससे। सीखना क्या था, ये नई चीज समझ में आई ना मुझे कि मेरे खुशी और दुख अभी भी दूसरों के हाथ में, अभी तक नहीं पकड़ में आती थी, आज मुझे पकड़ में आई। इसके लिए तभी तो मैंने वो प्रेयर भेजी यूनिवर्स को। जब मैंने यूनिवर्स को प्रेयर किया तब तो वो मुझे हेल्प करेगा ना। तो मेरी ये लर्निंग यहाँ से होनी थी, इसीलिए ही वॉज पार्ट ऑफ माई सोल प्लान, इसीलिए उसको आके वो रोल करना था। बट उसके बाद अब मैं उसको वो नहीं करने दूंगी क्योंकि वो मुझे डिप्लीट कर सकता है फिर से। मैंने अपनी लर्निंग कर ली, वो कर ली, लेकिन अभी भी जब सामने आएगा तो गुस्सा नहीं आएगा। मैं बहुत प्यार से बात करूंगी बिकॉज दिस इज माई, ये मैंने आदत डाली अपने आप की, मैं हर एक से अब प्यार से बात करूंगी जो भी है। आपने एक बहुत अच्छा बेहोशी वर्ड यूज किया उसके लिए कि वो तो बेहोशी में है ना, मैं तो कॉन्शियस हूँ। हाँ, बहुत अच्छा लगा एक्चुअली आपका कि वो और बेहोश है, दूसरा नशे ये में है। बहुत अच्छा लगा, नशा में ले लेगा कोई तो हम कहाँ उसका माइंड कर दें यार, बेचारा नशे में, छोड़ो ना, लेट इट बी। मैम मुझे भी एक चीज ऐड करनी है। और एक और चीज था जो मेडिटेशन का आपने बताया ना, मेरे साथ ऐसे हुआ अनंत चतुर्थी वाले दिन। तो मुझे ऐसे लगा और आपकी शेयरिंग से मुझे इतना अच्छा टेक अवे मिला आज कि मैंने सोचा कि मैं रोज तो मेडिटेशन करती हूँ, ये अभी भी मैं डगमगा जा रही हूँ, मतलब मेडिटेशन मेरे से नहीं हो रहा है क्या। अनंत चतुर्थी मतलब मैं बह गई थी, रिएक्शन हुआ। फिर मेरे साथ मैंने एकदम से अपने आप जान पाई और एकदम से मतलब आई वाज देयर फॉर एटलीस्ट। श्रेयांश सर 28 की 29 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, बोले आज भी मेरे को गुस्सा आ जाता है, आज भी रेजिस्टेंस निकलती है। और वो इंसान जो कि बैठे और मेडिटेशन में डीप घुस जाए, ऐसा इतनी प्रैक्टिस वाला, अगर उनके लाइफ में भी ऐसे आता है, उनसे भी रिएक्शन निकलता है, तो हम लोग तो बहुत नए हैं। और ये एंड तक चलेगा, जिस दिन तक हम लोग ये संसार छोड़ के नहीं जाएंगे, चलेगा। हमारी खाली यही है प्रैक्टिस कि हम उससे कितनी गिरेंगे भी। अभी जैसे मैंने बताया कि 3 दिन तक तो मैं भी गिरी ना, दुखी हो गई तो मैं तो गिरी ना, इतनी प्रैक्टिस के बाद भी मैं तो गिर गई। गिरेंगे भी, बट उस गिरने से, उस गिरी हुई स्टेट में रहना, जैसे वही सेड ना कि आप उसी गिरी हुई स्टेट में रहते हो कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ वीक्स के लिए, कि कुछ मंथ्स के लिए, कि कुछ सालों के लिए, आप चाहते हो उसी में रहना कि उसमें से निकलना चाहते हो, दैट इज नाउ योर डिसीजन हाउ लॉन्ग यू वांट दोज इमोशंस टू कंटिन्यू स्टेइंग विथ यू। उसमें से निकलने का आप अटेम्प्ट करते हो कि नहीं करते हो, दैट इज माई वर्किंग, दैट इज माई प्रैक्टिस। और मैं 3 दिन लगातार वो भगवान को पुकार रही थी कि मुझे निकालो, पर मैं नहीं निकल पा रही थी। मेडिटेशन करती थी, मेरे आंसू बह रहे थे, नो फोकस नथिंग, मेरे आंसू खाली बह रहे थे। एवरी टाइम सिटिंग फॉर मेडिटेशन में रो रही हूँ कि मुझे ये क्या देखने सुनने को मिल गया। चेतना मैम, बट एट दिस मोमेंट कितनी 2 परसों रात को ही तो मैसेज आया उसका, परसों शाम से ही प्रैक्टिस शुरू हुई। दिस इंसिडेंट हैपेंड सैटरडे को रात को, संडे को रात को वापस हम घर आए। संडे सारा दिन मैं रोते हुए आई, मंडे पूरा दिन रोते हुए निकला, आज थर्सडे है ना, ट्यूसडे शाम से, वरना प्रैक्टिस तो मेरा संडे से ही भगवान को पुकार चल रही थी कि यू हैव टू टेक पुल मी आउट। मैं बहुत नीचे गिर गई हूँ, आपको निकालना है मुझे। बट वो फीलिंग, उस गिरी हुई फीलिंग नहीं अच्छी लग रही थी, एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली प्रेइंग, मुझे निकालो, मुझे निकालो, शो मी हाउ टू आई कम आउट। देन वो मैसेजेस आने लगे
कि ऐसा हाँ हाँ कोई कैसा भी बिहेव करता है, योर वर्किंग इज टू जस्ट सेंड लव. दैट वाज द फर्स्ट मैसेज आई गॉट. एंड देन इमीडिएटली बाद में आया कि फॉरगिवनेस. क्या फॉरगिवनेस का पता नहीं है या लव का पता नहीं है? हमसे कई कई जगह पे कई चीजें नहीं हो पाती, तो इसीलिए यूनिवर्स बार वो रीइंफोर्स करके वो मैसेज फिर सामने लाके देता है, तब वो एक हाँ नए तरीके से इम्पैक्ट करती है हमको हाँ ना. एग्जैक्टली सही बात है यस. हमारा काम है, देखो हमारा काम है, हर चीज हम अपने से तो नहीं कर पाते ना. यूनिवर्स को बार बार मेरे से नहीं हो पा रहा है, आप प्लीज हेल्प करो. यू पुल और मी मैंने उस वक्त उस दिन अनंत चतुर्थी के दिन भगवान से प्रे किया, मतलब अच्छा लगा. मैंने कहा भगवान अच्छा ही हुआ आपने इस जन्म में मेरे को ये रियलाइज करा दिया, नहीं तो इसके लिए भी एक और लेना पड़ता. या हर ऐसे चीज मतलब अच्छे ग्रेटिट्यूड में चली बस गई थी. अपना लर्निंग हमको क्या हुआ, हमने क्या वर्च्यूज डेवलप कर ली. क्योंकि मैं कितना डरती शान सर से इस बार डांट पड़ गई थी मुझे, बताया रिट्रीट में. लास्ट में जो होता है ना सारा का सारा Q&A होता है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगी. ये बात का मैंने उनको भी इतना बार एहसास करा दिया, बेचारे ब्लश हो जाते हैं कि मैं चेतना को डांट के आया. एनीवेज व्हाटएवर इट इज. और चेतना जी मैं एक शेयर करना चाहती हूँ. जैसे मैंने अपनी मेरी बेटी है उसको मैं काफी बोलती रहती हूँ तू भी मेडिटेशन किया कर, मगर उसने मेरे को निकाला उस दिन. बड़े अजीब अच्छे तरीके से हम लोग वॉक कर रहे थे और एक स्ट्रीम नहर थी, तो नहर में उस कंकड़ डाला तो पानी उछल के ऊपर आया. तो उसने बोला कि आप कितना भी करो वो नेचर है पानी का ऊपर आना, मतलब कुछ भी उसमें डालोगे तो उछलना, इट्स अ फर्स्ट रिएक्शन. और कितनी देर उसमें रहते हैं, दैट इज द मोड. मतलब मैंने कहा अरे वाह बेटी तू तो, मैं तो मेडिटेशन करती हूँ मगर तूने मुझे वो. हाँ वी आर टीचिंग फ्रॉम, मतलब पूरा अस्तित्व हमें सिखा रहा है, बता रहा है आसपास. और हमारे अंदर ना कितनी कितनी कमियां छुपी हुई, हमें खुद को रियलाइज नहीं होता है. जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं इतना डरती थी, मेरी लाइफ में इतने चैलेंजेस मुझे रियलाइज भी नहीं होता था कि मैं उनसे डर में रह रही हूँ. और अब तो मैं रियलाइज करती हूँ कि मैं हर छोटी बड़ी बात से डरती हूँ कि कहीं ऐसे कोई कुछ नहीं बोल दे, वैसे नहीं बोल दे. तो ये फियर मेरा श्रेयांश ने निकाला मुझे. एक बार तो ऑनलाइन बात हुई थी, उस पे हुआ था. एंड देन उसके बाद वहां पे अगेन मैं कि अभी तो मैं कॉन्शियसनेस से डील कर रही हूँ, जब नेक्स्ट लाइफ आएगा तब थोड़ी ना मेरे अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी. मैं तो फिर एमनीशिया में जन्म लूंगी, तो फिर तो मेरे से वही गलतियां होंगी जो अभी तक मैंने गलतियां की हैं. तब मैं कैसे अपने आप को ठीक करूंगी. हाँ वो बोले कि आज का लाइफ जियो, इतना बात का क्यों सोचती हो, इतना जोर से मेरे को डांटा, तुम खाली इतना सोचती हो, इतना डर में जीना. तो हो सकता है तुम्हारा नेक्स्ट लाइफ प्लान यही हो जाए कि तुम अपने डर से कैसे निकलोगी, उसके लिए तुम अपने वैसे एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करोगी, वैसे एक्सपीरियंस प्लान करोगी. तो निकल गया. मैंने कहा कि ठीक है अभी बिंदास जिएंगे, बाद की बाद में देखी जाएगी, जो यूनिवर्स को कराना होगा करा लेगा. तो डांट पड़ी थी मेरे को उस दिन काफी. चेतना मैम, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसमें एक लाइन आती है कि आई एंजॉय द फ्रीडम व्हेन आई डोंट टेक थिंग्स पर्सनली. तो जब भी पूरे दिन में अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो मेरा माइंड सुबह सुबह प्रिपेयर हो चुका होता है इस बात के लिए कि मैं उस आनंद के एहसास चीजों को पर्सनली नहीं लेती. तो वो इमीडिएटली खत्म हो जाता है. मेडिटेशन जब हम करते हैं तो उसमें एक लाइन आती है ना ये वाली, enjoy the freedom when I don't take things personally. तो मैं तो उसमें फिर उसी टाइम वो अगर मुझे किसी कोई बात अच्छी नहीं लगी तो मैं उसको पर्सनली लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ही मैंने अपने माइंड को प्रोग्राम कर दिया मेडिटेशन करके. तो उसमें गई ही नहीं मैं. तो मतलब ये मेडिटेशन तो इतना बढ़िया टूल है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत लाइफ बढ़िया हो रही है, मजेदार हो रही है. हाँ बस मतलब जिसको समझ में आ जाए. कई तो लोग बेचारे ये बातें सुन के डरे हुए हैं. मैं तो देखती हूँ कितने सारे लोग होते थे वो डर के भाग गए कि कहाँ चले गए, कि उनके दिमाग में ये ब्रेन वॉश कर दिया गया कि मेडिटेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. सो ओके, एवरीबॉडी हैज देयर ओन चॉइस ना. एनीवेज अब एंड करते हैं बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग सम गेस्ट आल्सो. कुछ खाना भी है प्लीज. मैंने तो सिर्फ आधा ही अटेंड किया है. मैंने आपका सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन ही अटेंड किया है. कल करूंगी पूरा, मुझे कुछ काम था आज. बट इट वाज नाइस इंटरेक्शन. मैं देख रही थी, बहुत अच्छा लगा मुझे. वेरी नाइस. और पूरा दिन मुझे तो पता है यूनिवर्स से क्या क्या रास्ते निकल आ रहे हैं एंजॉय होने के, खुश होने के. सुबह सुबह मेडिटेशन कर लेती हूँ, पूरा दिन मस्त बीतता है, बहुत अच्छा बीतता है. नए नए रास्ते आ जाते हैं यार कि हम एंजॉय दे जाते हैं, खुशी दे जाते हैं, मजे दे जाते हैं. चेतना जी, none of us want to leave you.
Huh? Why? None of us want to leave you, I said. I know. I want to leave, but my Okay, bananas bye. are lying next to me. I want to eat my bananas now. No, please go ahead. Go ahead. Chaliye, Bye. okay. Thanks so much for Bye. sparing so Bye. much Call time. tomorrow, okay? Thank Okay. you so Bye. much. Love you, love you. Thank you, So चेतना जी। invite Thank you, more Chetna people, ji. यार. Thank Invite you. जब मैं इतना एफर्ट कर रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुने तो अच्छा रहेगा ना. So invite more people for tomorrow's session, okay? Then I will release the recording. Okay, guys. Bye bye.